Yes. Karusa, start. Good evening, participants. I welcome you all in refresher course on GST organized by CASA. CASA is an NGO imparting knowledge from a decade. This course is of 6 days wherein we will discuss about ITC and reversal of ITCs, procedures of GST on e-commerce platform, procedure of supplies including concept of mixed and composite supply, scrutiny assessment handling cases, adjudication and audit in GST, export, import, and refund in case of exports. I welcome CS Sumit Garg, founder and president of Team CASA. Thank you, Paras, for moderating today's session. First of all, a warm welcome to each one of you for joining this GST course, where we are going to learn in this next six sessions practically what we are facing challenges in GST. My good friend and a learned person, C. Arun Chajar ji is here. Arun ji, welcome to you in this opening session on the GST ITC. Because we have planned this advanced level, so we have keep it in this way so that we can learn something which we are practically facing the challenges. Today's session all about ITC, but we have taken the reversal issues क्योंकि ITC के बारे में हम सबको पता है कि ITC लेना है, बट उसका रिवर्सल कब करना है, क्या रिक्वायरमेंट है लॉ की, तो हम एडवांस लेवल पर उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे. And other faculties so on will take up the practical issue challenges in the time to come in the practicing scenario. We have all the schedules. We will share the recording of this session and presentation PPT by mail or by WhatsApp group. Once again, welcome to each participant, Atika ji and other participant. I cannot see because video is not on. But you can ask any query in the chat box. We will take up as and when a reasonable time to discuss. About Arun ji, Arun is a GST faculty and trainer, guide and teacher in the GST. Continuously imparting various sessions with the ministry, with the ICI chapters, branches, study circles, and various other platforms. Each having a deep knowledge of the entire GST law. Rather, I would say he is a master in learning about GST. So we would like to say that this journey should be continued about our learning. So without taking much of time, I straight away request Arun ji to take up the first technical session of the day. So first of all, thank you so much, Kasa and CS Sumit ji. So and especially कि मैं इस webinar की शुरुआत कर रहा हूँ. Starting session is initiated by me. Thank you so much for the opportunity. And जो भी question है आप लोगों के participant के during the session आप पूछते रहिएगा. Will easily handle and then we'll move to the further. क्योंकि अगर मैं एंड में रखूंगा तो होगा क्या, जो क्वेश्चन आपके माइंड में अभी आएगा ना वो भूल जाएंगे. सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट कि क्वेश्चन आप एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे ही आप लेंगे. ये हमारा साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से पार्टिसिपेंट कनेक्टेड है, राइट? हाँ, फ्यू पार्टिसिपेंट्स आर. कम्युनिकेशन कैसे रखनी है, कंप्लीट इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश कॉम्बो? सर हिंदी इंग्लिश मिक्स रखिए, दैट विल बी द बेटर. हाँ वो ठीक है, ठीक है, थैंक यू. सो आज के वेबिनार की शुरुआत मैं करता हूं इस नोटिस के साथ. हमें रिवर्सल क्यों जानना जरूरी है, इसका कारण ही नोटिस है. इस नोटिस से हमें यह समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इसका लिंकिंग 3B की फाइलिंग से भी है और कहीं ना कहीं इसका लिंकिंग आईटीसी के चैप्टर के साथ में भी है. एक बार पहले लैंग्वेज को रीड कर लेते हैं एंड देन विल मूव टू द रेस्पेक्टिव प्रोविजन ऑफ द जीएसटी. यहां पे अगर सब्जेक्ट की बात करूं, नॉन रिवर्सल ऑफ द आईटीसी, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्ट सप्लाई रिगार्डिंग. नोटिस क्या कहता है? दिस ऑफिस हैज received the report from the GSTN that you have supplied both taxable as well as exempted
but you have not reversed ITC proportionately as per 42 and 43. ठीक है, दो फाइनेंशियल ईयर का इसने जिक्र किया है। इसने क्या दिया है, टोटल टैक्सेबल टर्नओवर दिया है, टोटल एग्जेम्प्टेड टर्नओवर दिया है और टोटल टर्नओवर कर दिया, और उसने एग्जेम्प्टेड का रेशियो निकाल दिया, और जितनी भी आईटीसी इस पर्सन ने क्लेम की थी उसका उसने उस रेशियो में अलोकेशन करके बोल दिया भैया इतनी आईटीसी रिवर्स करनी है। इसने रिवर्स नहीं की, तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक पॉइंट ये बताना चाहता हूं, रिवर्सल करना वो एक अलग बात है, ठीक है ना, बट इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, डिपार्टमेंट को कैसे मालूम चलेगा, इसका ट्रिगर पॉइंट है 3.1.c ऑफ द जीएसटीआर 3B। मैं जीएसटीआर 3B की जो टेबल फिल करता हूं, मैं जीएसटीआर 3B की जो टेबल फिल करता हूं, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्टेड सप्लाई एक्सेट्रा, उसमें एग्जेम्प्टेड का डायरेक्टली लिंकिंग, और बिलीव मी फ्रेंड, बिलीव मी, वो कुछ देखेंगे ही नहीं डिपार्टमेंट वाले। अगर आपने एग्जेम्प्ट में अमाउंट डाला है ना, तो अगर आपने रिवर्स नहीं किया, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नोटिस, फेमस नोटिस है उनका, वो भेजेंगे ही भेजेंगे। अब पहले हम देख लेते हैं कि क्या प्रोविजन है, और उसके बाद में बात करते हैं कि कैसे इसको हैंडल करें इन नोटिस को, क्योंकि पॉसिबल है कि मेरी एग्जाम सप्लाई हो, इट इज नॉट अवॉइडेबल भाई। और क्या मुझे उस केस में 42 43 का रिवर्सल करना है या नहीं करना, पहले हम प्रोविजन की बात करते हैं। मैं आता हूं स्टार्टिंग, मैं स्टार्ट करता हूं सेक्शन 17 से। अच्छा, कोई मुझे बता पाएगा मुझे आईटीसी रिवर्स क्यों करनी पड़ती है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई आई शुड रिवर्स माय आईटीसी? मैं 5 मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर रहा हूं सर, ठीक है सुमित जी, 5 मिनट के लिए मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूं, थोड़ा सा नया नेटवर्क है इसलिए मेरे को लग रहा है थोड़ा ट्रबल है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या मुझे कोई बता सकते हैं कि आईटीसी रिवर्स क्यों करनी पड़ती है? एनीबॉडी टेल मी। इंटरेक्टिव रखेंगे तो मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में और आप लोगों को भी एंजॉय होगा। जितना आप रिवर्ट करेंगे उतना बेटर है। सीए नेहा जैन ने हैंड रेज किया है, कोई पॉइंट है तो आप चैट करें, बाकी हम अगर बात करनी है तो हम बात एंड ऑफ द वेबिनार में जरूर करेंगे अगर टाइम मिला तो, ठीक है ना। बट मीनवाइल अभी हम फोकस करते हैं मेरे क्वेश्चन पर। अरुण जी कई सारे हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं 1 बाय 1 पिक कर लूंगा सर, एक मिनट। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने काफी रिवर्ट किया। भाई सबसे पहला आंसर एक मेरे पास में आया है कि 17 सेक्शन 17 रिवर्सल ऑफ द कॉमन सप्लाईज एग्जेम्प्टेड एंड टैक्सेबल इन एलिजिबल क्रेडिट। इस पॉइंट में बात करना होगा, क्या इन एलिजिबल क्रेडिट के कारण मुझे आईटीसी रिवर्स करना है? वी नीड टू डिस्कस, ठीक है। इफ देयर इज ए रिवर्स इन एक्सपेंसेस, पॉइंट नॉट क्लियर, रिवर्स इन एक्सपेंसेस नहीं समझ में आया। ASA CA 17 perfect. If ineligible ITC has been availed, then it has to be reversed. Perfect. Due to the debit note, डेबिट नोट के कारण मुझे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा टू सम एक्सटेंट। आई एम ओके। नॉट मेकिंग द पेमेंट विद इन ड्यू डेट, सप्लाई द एग्जेम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल सप्लाईज, ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट, ऐसे बहुत सारे जवाब आते हैं, आ चुके हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट। अब मैं बात करता हूं, देखो एक बार मैं 3B की टेबल में जाता हूं। जीएसटीआर 3B की ये टेबल है आईटीसी की टेबल 4, हम सभी को मालूम है। 4A आईटीसी अवेलेबल की बात करता है, 4B आईटीसी रिवर्सल की बात करता है। यहाँ पे दो तरह के रिवर्सल, एज पर 42 43 और एज पर अदर रिवर्सल। अदर रिवर्सल मुझे कई सारे जवाब मिल चुके हैं, आई एम फुल्ली सैटिस्फाइड विद ऑल द आंसर। अदर आईटीसी के रिवर्सल का कारण क्या हो सकता है? भाई सप्लायर को मैंने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, मुझे अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेटली जितना मेरा अनपेड है। अगर मैंने कोई डेबिट नोट रेज किया है तो इसकी जगह ऐसा बोलूं, अगर मुझे क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है, दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, आई कैन से, बट ठीक है, लॉजिकली इज ओके। मतलब जीएसटी वाला क्रेडिट नोट अगर मुझे रिसीव हुआ है तो मुझे क्रेडिट रिवर्स करनी है। कई बार होता ना फाइनेंशियल क्रेडिट नोट भी आता है, उसके कारण मुझे क्या जीएसटी रिवर्स करनी है? आंसर वुड बी नो।
नेक्स्ट कि कोई रॉन्ग मैंने ले लिया, उसके कारण आईटीसी रिवर्स करना, ठीक है। पहले मैंने गलत आईटीसी ले लिया, कोई एलिजिबल समझ के ले लिया, बाद में मुझे मालूम चला ये इनएलिजिबल, आई विल रिवर्स दैट आईटीसी, परफेक्टली ओके। ये तो बात सारी जो हमने की वो अदर रिवर्सल के लिए की है। 4B2 की बात कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं 4B1 की। ये क्या है? इसके लिए मुझे एक बार सेक्शन 17 में जाना पड़ेगा। 17(1), 17(2) इसकी प्राइमा फेसी कंडीशन है। अगर वो एप्लीकेबल हो जाती है किसी केस में तो मुझे अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। क्या है? पढ़ते हैं सर। 17(1) कहता है, 17(1) कहता है अगर 17(1) कहता है अगर मेरा आईटीसी दो पर्पज के लिए यूज हो रहा है, एक तो बिजनेस पर्पज, एक अदर देन बिजनेस पर्पज। एग्जांपल के लिए मान लो मैंने ये बिल्डिंग ली है, ठीक है, और इस बिल्डिंग को क्या करता हूं मैं, यूज करता हूं मेरे बिजनेस पर्पज के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मॉर्निंग में मैंने सोचा यार थोड़ा सोशल हूं, तो मैंने सोचा यार योगा एक्टिविटी के लिए मैं अलाउ कर देता हूं, मॉर्निंग 6 to 8 योगा एक्टिविटी चलती है। शाम को बच्चे काफी खेलते हैं, तो मैंने सोचा यार मेरा 6 बजे बाद ऑफिस बंद हो जाता है, तो बच्चों को मैं खेलने के लिए अलाउ कर देता हूं। आई कैन से जीएसटी जो मैं पे कर रहा हूं उस रेंट पर, मैं जो जीएसटी पे कर रहा हूं उस रेंट पर, क्या मैं पूरा बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा हूं? आंसर वुड बी नो। क्यों? क्योंकि इसका दो यूज है, एक मेरा बिजनेस पर्पज और एक है मेरा अदर देन बिजनेस। देन इन दैट केस आई शुड रिवर्स माई आईटीसी कितना? टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉन बिजनेस पर्पज। अब नॉन बिजनेस कैसे निकालेंगे, वी विल डिस्कस इन रूल 42। सेकंड बात करते हैं 17 सबसेक्शन 2। वो कहता है अगर आप अपने आईटीसी को दो पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, वन इज एग्जेम्प्ट एंड वन इज टैक्सेबल सप्लाईज। और टैक्सेबल के विद इन ब्रैकेट क्या लिखा हुआ? टैक्सेबल में क्या लिखा हुआ? इंक्लूड जीरो रेटेड। मतलब जीरो रेटेड अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं तो क्या मुझे आईटीसी रिवर्स करना है? दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। अगर मैं जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा हूं अगेंस्ट एलयूटी, मैं कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहा, डू आई नीड टू रिवर्स सम आईटीसी? काइंडली गिव मी द आंसर। एब्सोल्युटली करेक्ट, आंसर वुड बी नो, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई में मैं टैक्स नहीं दे रहा। लेकिन 17(2) ने जीरो रेटेड सप्लाई को क्या माना है? इक्विवेलेंट टू टैक्सेबल सप्लाईज। अब टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दो चीजों में मैं सप्लाई कर रहा हूं, मैं अपनी आईटीसी को दो पर्पज के लिए यूज कर रहा हूं। आई वुड बी एबल टू टेक द आईटीसी टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। इसका मतलब क्या हुआ? जितना आईटीसी मेरा एग्जेम्प्ट के लिए यूज हो रहा है, आई नीड टू रिवर्स दैट आईटीसी। दो रूल बनाए हैं, एक रूल 42 है और एक रूल 43 है। 42 हमें क्या कहता है? इनपुट एंड इनपुट सर्विस का रिवर्सल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है। इनपुट एंड इनपुट सर्विस का रिवर्सल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, यू विल टेक द हेल्प ऑफ 42 एंड इन केस ऑफ द कैपिटल गुड्स यू विल टेक द हेल्प ऑफ द रूल 43। किसका रिवर्सल? रिवर्सल चाहे 17(1) का हो या 17(2) का, दोनों के बारे में बात करता है। कौन? 42। तो यहाँ पे 17(2) जो कि मेरा एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल है, कुछ अमाउंट बताएगा, कुछ तरीका बताएगा, कुछ फॉर्मूला बताएगा, परफेक्टली ओके। फॉर 17(1) देयर वुड बी सम अमाउंट, सम पैटर्न, देयर वुड बी सम कैलकुलेशन फॉर 17(1), ओके। अब एक क्वेश्चन आपसे, मैं एडवोकेट हूं, रजिस्टर्ड हूं जीएसटी में, मैं एडवोकेट हूं, रजिस्टर्ड हूं जीएसटी में, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, आप बिजनेस एंटिटी है, आप भी रजिस्टर्ड है, ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगा जीएसटी में अंडर आरसीएम, यू विल पे द टैक्स। मैं 17 की बात नहीं कर रहा, मैं सेक्शन 17 की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल पूछ रहा हूं। सप्लाई प्रोवाइडेड बाय द एडवोकेट टू द बिजनेस एंटिटी विच कम अंडर रिवर्स चार्ज, क्या वो सर्विस मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट है? क्या वो सर्विस एग्जेम्प्ट है?
नहीं, आपके पास नवीन, मिस्टर नवीन, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या यस या नो। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं एक बार 17 को भूल जाता हूं, मैं 17 की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं तो सिंपली पूछ रहा हूं कि एडवोकेट अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, क्या वो सप्लाई एग्जेम्प्ट है? पॉइंट ये है सर, अगर एग्जेम्प्ट होता तो क्या रिसिपिएंट आरसी में टैक्स पे करता? अनदर क्वेश्चन, थिंक अबाउट द क्वेश्चन कि अगर वो ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट होता तो क्या रिसिपिएंट टैक्स पे करता? आंसर वुड बी नो। अगर आंसर वुड बी नो तो मतलब सर्विस तो एग्जेम्प्ट नहीं है, सर्विस एग्जेम्प्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एडवोकेट हूं, कोई भी कैटेगरी की बात कर लेता हूं मैं, जिसकी आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स रिसिपिएंट दे रहा है, नॉर्मली तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, पर 17(3) ने कहा कि मैं 17(2) के लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई के स्कोप को वाइडर कर देता हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, 17(3) ने कहा कि मैं 17(2) में जो वर्ड एग्जेम्प्ट सप्लाई यूज हुआ है उसकी मीनिंग को मैं इनलार्ज कर देता हूं। एग्जेम्प्ट सप्लाई जो आपने पढ़ी है सेक्शन 2 क्लॉज 47 में, वो तो एग्जेम्प्ट सप्लाई है ही। जो एग्जेम्प्ट सप्लाई आपने 2 क्लॉज 47 में पढ़ी है वो तो एग्जेम्प्ट है ही। उसके अलावा फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड बी इंक्लूडेड इन द एग्जेम्प्ट सप्लाई ओनली फॉर द पर्पस ऑफ 17(2). क्या है? सॉरी, स्लाइड नहीं किया मैंने। पहला, आउटवर्ड आरसीएम, मतलब अभी जो मैं एग्जांपल की बात कर रहा था वो नॉर्मली तो टैक्सेबल है, बट मैं जब आईटीसी के रिवर्सल की बात करूंगा तो कहता है आउटवर्ड आरसीएम वुड बी कंसीडर्ड एज एग्जेम्प्ट। इसका एक एग्जांपल और देता हूं। आप लोग सभी जानते हैं कि मान लो मैं जीटीए हूं, मैं ट्रांसपोर्टर हूं और मैं सप्लाई करता हूं, उसके ऊपर टैक्स रिसिपिएंट देता है। मैंने एक ट्रक परचेज किया, उसके ऊपर जीएसटी पे किया, क्या मैं आईटीसी ले सकता हूं? मैंने एक ट्रक परचेज किया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स व्हीकल की बात करूं, ब्लॉक क्रेडिट में नहीं है, 17(5)(a) में फॉल नहीं करेगा। मैंने एक ट्रक परचेज किया, क्या मैं इसकी आईटीसी ले सकता हूं? मैंने एक ट्रक परचेज किया, क्या मैं आईटीसी ले सकता हूं? मैंने एक ट्रक परचेज किया, क्या मैं आईटीसी ले सकता हूं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिक्वेस्टिंग ऑल टू गिव द रिप्लाई। मैं ट्रांसपोर्टर हूं, मैंने कॉमर्शियल पर्पस के लिए ट्रक परचेज किया, ओनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए मैंने ट्रक परचेज किया। अगर मैंने ट्रक परचेज किया गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्या मैं इसकी आईटीसी ले सकता हूं? इसका आंसर सर स्ट्रेट फॉरवर्ड यस या नो नहीं हो सकता। आपको मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि मैं कौन हूं, जीटीए हूं, जो अपनी सर्विस दे रहा है उसके ऊपर टैक्स कौन दे रहा है? रिसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है, करेक्ट। सो मैं जो सप्लाई कर रहा हूं उसके ऊपर टैक्स मैं नहीं पे कर रहा, रिसिपिएंट पे कर अंडर आरसीएम। आई हैव नॉट ऑप्टेड फॉरवर्ड चार्ज, आई हैव नॉट ऑप्टेड फॉरवर्ड चार्ज, मीनिंग देयरबाय according to 17(3) my outward supply would be considered as exempted for 17(2) and therefore I am not eligible to take ITC. बहुत बढ़िया सीए चंदन सिंह, एब्सोल्युटली करेक्ट। डेल जो भी नाम आ रहा है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप अपना नाम लिखेंगे तो ज्यादा इंटरेक्शन में मजा आता है जब हम नाम से बात करते हैं। तो अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या जीटीए 5% लगा सकता है? मतलब एक क्वेश्चन पॉइंट आया, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। अभी भी बहुत बड़ी एम्बिग्यूटी है, मैं अपना व्यू साझा कर सकता हूं आपके साथ, एक्चुअल पोजीशन तो अपनी अपनी अलग अलग है। क्या जीटीए 5% चार्ज कर सकता है अंडर फॉरवर्ड चार्ज? क्या जीटीए 5% चार्ज कर सकता है अंडर फॉरवर्ड चार्ज? द आंसर वुड बी नो, answer would be no. As per law, no. According to you, yes. उसने रास्ता ही नहीं छोड़ा। अगर मैं नोटिफिकेशन 13/2017 की बात करता हूं, आरसीएम के नोटिफिकेशन की, पहला सीरियल नंबर करता है, अगर जीटीए ने 12% ऑप्ट नहीं किया और 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ द रिसिपिएंट है तो ट्रांजैक्शन कम अंडर रिवर्स चार्ज। क्वेश्चन आता है उन 7 के अलावा है तो क्या? 21A नया सीरियल नंबर ऐड किया, उन्होंने बोला ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट है, झमेला खत्म, ईदर 12% और देयर इज नो टैक्स, ईदर 12% और देयर इज नो टैक्स। लेकिन
लेकिन सर अगर मैं पूछूं कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें 5% चार्ज करे, मेरा मानना है यस, मेरे हिसाब से दो सिचुएशन ऐसी है, मेरे हिसाब से दो सिचुएशन ऐसी है जिसमें ट्रांसपोर्टर 5% चार्ज कर सकता है। एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे कंफर्म कर देना, माइट बी और नॉट एग्री। पहला मैं बात कर रहा हूं कि मान लीजिए मैं एसईजेड यूनिट को सप्लाई कर रहा हूं, क्या ट्रांजैक्शन एसईजेड यूनिट को सप्लाई करने पर रिवर्स चार्ज में आता है? मैं रिवर्स चार्ज नहीं डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपको 17.3 पहला आइटम के बारे में थोड़ा डिटेल ड्रिल डाउन कर रहा हूं। प्लीज डू नॉट अंडरस्टैंड दैट आई एम गोइंग इनटू द रिवर्स चार्ज। अगर सप्लाई टू द एसईजेड यूनिट है, क्या उस पर रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा एसईजेड यूनिट अंडर आरसीएम, या सप्लायर फॉरवर्ड चार्ज पे करेगा? एनीबडी, मे आई रिक्वेस्ट? क्या रिसिपिएंट आरसी में टैक्स पे करेगा? द यूनिट लोकेटेड इन द एसईजेड यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड यूनिट विल पे द टैक्स अंडर आरसीएम, या फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा? Will the recipient located in the SEZ unit will pay the tax and the reverse charge? The answer would be forward charge. कारण क्या है, प्रॉब्लम क्या है? सर आप 3B फाइल करके देखना। देखो अगर लॉ की बात करूं ना, मेरे हिसाब से भी आरसीएम होना चाहिए। दिसंबर 2018 FAQ ऑफ सीबीएसई, थर्ड FAQ, उसने भी एक्सेप्ट किया था एक क्वेश्चन का आंसर देने में कि द रिसिपिएंट लोकेटेड इन एसईजेड यूनिट विल पे द टैक्स अंडर आरसीएम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पोर्टल है, जीएसटी पोर्टल। जैसे ही आप एसईजेड यूनिट का नंबर डालेंगे, सपोज आई एम रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर, once I will put the SEZ unit का नंबर in the table 4 of the GSTR1, जो एक वो टिक चेकबॉक्स आता है ना, सप्लाई अट्रैक्ट आरसीएम, एक वो चेकबॉक्स आता है ना जिसको टिक करना होता है, वो डिसेबल हो जाता है, यू कैन नॉट सेलेक्ट, मीनिंग देयर बाय। और एक इंटरनल डिस्कशन हुआ था, मतलब उसका आउटकम नहीं आया था जीएसटी काउंसिल मीटिंग का, बट इंटरनल मीटिंग में डिस्कशन हुआ था। उसमें ये कहा कि अगर आप एसईजेड यूनिट को सप्लाई कर रहे हैं, आपका ट्रांजैक्शन तो फॉरवर्ड चार्ज में होगा, टैक्स पे करो रिफंड ले लो, या टैक्स मत पे करो एलयूटी फाइल कर दो। मीनिंग देयर बाय वन थिंग इज क्लियर, when I'll provide the service to the SEZ unit, that transaction will not come under reverse charge, that will under forward charge। ये कहीं ना कहीं मुझे क्यों लगता है, या ऐसा मान लीजिए, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं बाई रोड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, ठीक है, किसको? कंपनी लोकेटेड आउट ऑफ इंडिया, लेट्स से पाकिस्तान, लेट्स से भूटान, कोई भी ऐसा मान लीजिए कि बाई रोड पॉसिबल है। नेपाल मान लीजिए आप, क्या नेपाल लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी है? Yes or no? Sorry, I'm asking too much question. Please give me the reply. क्या नेपाल located in the taxable territory है? Answer would be no. RCM की एक बेसिक कंडीशन होती है ना, RCM की एक बेसिक कंडीशन होती है ना कि the recipient should be located in the taxable territory. RCM की एक बेसिक कंडीशन होती है the recipient should be located in the taxable territory. In that case, suppose I am providing the service of the transportation of goods by road to the Nepal. कोई कॉर्पोरेट है, कोई पर्सन है नेपाल, क्या ये आरसीएम के दायरे में आएगा? माई आंसर वुड बी नो, बिकॉज तेरा कहता है कि रिसिपिएंट शुड बी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। इन दैट केस लायबिलिटी शिफ्टेड टू द सप्लायर, जीटीए, ट्रांसपोर्टर विल पे द टैक्स, एज्यूमिंग ऑल द कंडीशन सैटिस्फाइड हो गई तो ये ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट बन जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट लायबिलिटी ट्रांसपोर्टर आएगी। यहां पे मेरा मानना है कि 5% ऑप्ट कर सकता है, यहां पे मेरा मानना है कि जीटीए कैन ऑप्ट 5% टू पे द टैक्स और 12% टू पे द टैक्स। क्यों? क्योंकि आरसीएम का नोटिफिकेशन अप्लाई नहीं होता इस केस में जहां पे रिसिपिएंट लोकेटेड आउट ऑफ इंडिया। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, 17.3 क्या कहता है? अगर आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं जो कि आरसीएम में कवर है, तो आपके हाथ में वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा, एंड दैट इज द रीजन अगर जीटीए 12% ऑप्ट नहीं करता है, डोमेस्टिक कस्टमर है, मैं मानता हूं, एज्यूम करता हूं कि डोमेस्टिक कस्टमर है, तो रिसिपिएंट लोकेटेड इन इंडिया है,
they are paying the tax under RCM. GT is not paying the tax under forward charge. In that case, the supply, outward supply will be considered, as exempt in the hand of the GTA. अगर उसकी सारी सप्लाई वैसी है तो वो कोई भी ITC नहीं ले सकता. अगर कुछ टैक्सेबल कुछ एग्जेम्प्ट है, he need to reverse some common ITC. Transaction in security, sale of land subject to clause B para 5 schedule 2 sale of building. ये इतना क्यों ऐड किया तामझाम शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज बी? क्योंकि मेरे को मालूम है कि शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज बी में हम क्या कहते हैं कि बिल्डिंग अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है दैट वुड बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई द सर्विस, मतलब वो टैक्सेबल होती है. करेक्ट. इसके लिए उसने सब्जेक्ट टू लिख दिया. बेसिकली अगर मैं इस पैरा की बात करूं 17.3 में, इस पैरा की बात करूं, कोई मुझे बता सकता है ये लाइन कहां लिखी हुई है लॉ में? कहां लिखी हुई है? कोई ऐसा शेड्यूल, कोई ऐसा सेक्शन, कोई ऐसा नोटिफिकेशन? सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी पैरा 5 शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग. ये एग्जैक्ट लाइन कहीं से ली है? कैन एनीबॉडी टेल मी वेयर फ्रॉम वेयर इट इज पिक्ड अप? ये लाइन कहीं लिखी हुई है, इधर शेड्यूल और नोटिफिकेशन और सेक्शन और रूल्स कहीं लिखी हुई है? कोई बता सकता है ये लाइन कहां पे लिखी हुई है? क्योंकि उसका इंटरलिंकिंग एक्सप्लेनेशन और नीचे मुझे कुछ पार्ट डिस्कशन करना आपके साथ. कैन एनीबॉडी टेल मी वेयर इट इज रिटन? सुमित जी एक सेकंड, वॉइस में इको नहीं है ना? खाली एक बार कंफर्म कर देना चैट पर. वॉइस में इको बिल्कुल नहीं है ना? परफेक्ट है सर, परफेक्ट है. ठीक है अरुण जी, परफेक्ट आवाज है आपकी. ठीक है जी. एक आंसर आया मेरे पास में रेस्टोरेंट के केस में, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग. आई थिंक चंदन जी कुछ और कह रहे हैं आप, इसके अलावा कहीं और पढ़ा है क्या? चलो मैं पूछता हूँ, शेड्यूल 3 में कवर है ये? शेड्यूल 3 में कवर है? शेड्यूल 3 पैरा 5, शेड्यूल 3 पैरा 5 में कवर है? ये शेड्यूल 3 पैरा 5 का एग्जांपल है, सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू पैरा 5 क्लॉज बी ऑफ द शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग. अब मजे की बात क्या है? मजे की बात क्या है? इसने एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया. उसने मुझे एक क्लैरिटी दे दी कि आपको शेड्यूल 3 की सप्लाई के कारण आईटीसी रिवर्स नहीं करना है एक्सेप्ट पैरा 5. पैरा 5 क्या है? यही वाला लाइन जो हमने ऊपर पढ़ी थी ना, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. ये पैरा 5 की बात करता है, ये पैरा 5 की बात करता है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. इस पैरा को छोड़ दीजिए, इस पैरा को हटा दीजिए. इसके अलावा टोटल कितने पैरा है, कितनी एक्टिविटी है, ट्रांजैक्शन मेंशन है शेड्यूल 3 में? टोटल 8 एक्टिविटी मेंशन. करेक्ट. उन 8 एक्टिविटी के कारण क्या मुझे आईटीसी रिवर्स करना है? एक पांचों के, ये 5th नंबर आइटम है, इसको छोड़ दीजिए. इसके बाद एक्सप्लेनेशन ने कहा कि वैल्यू ऑफ द एग्जेम्प्ट सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड शेड्यूल 3 एक्सेप्ट पैरा 5. इसका मतलब क्या हुआ? डू आई नीड टू रिवर्स? आंसर वुड बी नो. ये मेरे लिए थोड़ा रिलैक्स का बात हुआ, थोड़ा सुकून का बात हुआ, क्योंकि मान लीजिए मैं एक टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, साथ में मेरी कुछ सेल हाइसीज में है, कॉमन ऑफिस है, ऑफिस कॉमन है, स्टाफ कॉमन है, टेलीफोन कॉमन है, प्रिंटर कॉमन है, एएमसी कॉमन है, एवरीथिंग इज कॉमन. बट एक ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स पे कर रहा हूं, एक ट्रांजैक्शन के ऊपर मैं गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा. कौन से ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स नहीं दे रहा? सर वो हाईसी सेल है जो. क्यों? शेड्यूल 3 में कवर है. शेड्यूल 3 में कवर है कि अगर मैं हाईसी सेल करता हूं, दैट वुड नाइदर बी सप्लाई द गुड्स नॉट टू बी सप्लाई द सर्विस. कहने का मतलब मेरी आउटवर्ड सप्लाई, एक ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है, एक ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट है बट नॉट एग्जेम्प्ट. एक ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 में कवर है बट स्टिल आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स, इवन दो आई एम नॉट पेइंग द टैक्स, बट आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन. फाइन. अब यहां पे अगर मैं सिक्योरिटी में ट्रांजैक्शन करता हूं या मेरा ये लैंड बिल्डिंग का ट्रांजैक्शन है, तो उसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी? रूल 45 एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि for determining the value of the exempt supply as referred in 17.3, the value of the land and building shall be taken as the same as adopted for the purpose of paying the stamp duty. And security के लिए कहा इसने, आप 1% of the sale value of such security आप इसको मानेंगे exempt supply को.
हाँ, ये पॉइंट अच्छा है, कैन बी सो। हाँ, मैं बात कर लेता हूँ, इसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। अभी 3B का मैं बात कर लेता हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए, आई विल डिस्कस दिस पॉइंट ऑल्सो। तो क्या हुआ, एक कॉमन क्वेश्चन आता है, एक कॉमन क्वेश्चन आता है। मान लीजिए आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप ऑडिटर हैं या किसी के कंसल्टेंट XYZ लिमिटेड के, उस कंपनी ने एक जमीन थी, उस जमीन को सेल किया, लैंड को सेल किया, क्या उसे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? क्या उसे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा जितना भी उसने आईटीसी लिया, टू द एक्सटेंट ऑफ सेल ऑफ लैंड, वेदर दैट कंपनी नीड टू रिवर्स? सोच के जवाब दीजिए, आपको टाइम लेना, टाइम ले लीजिए, बिकॉज दिस आंसर वुड हेल्प इन ड्राफ्टिंग दैट नोटिस। जो ये आंसर मुझे आप करेंगे ना, दैट आंसर वुड हेल्प इन ड्राफ्टिंग दैट नोटिस। जो मैंने आपको स्टार्टिंग वेबिनार में, वेबिनार के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको नोटिस बताया था, मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूं। आपने एक कंपनी के फाइनेंशियल्स में इनकम साइड में सेल ऑफ लैंड लिखा हुआ था या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड लिखा हुआ था, मतलब उस कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर में लैंड को सेल किया है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जितनी भी उस पीरियड में 3B में आईटीसी ली थी, क्या उसे रिवर्स करनी पड़ेगी प्रोपोर्शनेटली टू द सेल ऑफ लैंड? ओवर टू यू। एक बढ़िया पॉइंट आया है, नॉट आफ्टर 5 ईयर। द आंसर वुड बी नो। सीए आशा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा रीजनिंग ऐड कीजिए, थोड़ा रीजनिंग ऐड कीजिए। क्यों? यहाँ पे सिर्फ यस नो के साथ साथ मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे कुछ रीजन बताएं। मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं सभी के आंसर का, देन आई विल स्टार्ट। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड। एक जो पॉइंट आपका था ना, आशा, सी आशा, आपने ये लिखा है एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूड शेड्यूल 3 पैरा 5। नहीं नहीं, उल्टा मतलब है इसका। शेड्यूल 3 एक्सक्लूड है फॉर द पर्पज ऑफ द रिवर्सल, एक्सक्लूडिंग या पैरा 5। मतलब क्या हुआ, शेड्यूल 3 के 8 एक्टिविटीज में पैरा 5 को छोड़ दीजिए, बाकी 7 एक्सक्लूड है फॉर द पर्पज ऑफ द रिवर्सल। बट ये जो पैरा 5 है वो इंक्लूड है। पैरा 5 यही तो है ना, पैरा 5 यही तो है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इसका मतलब वो तो इंक्लूड है ना। अब आपका क्या व्यू होगा, एक बात ध्यान रखना, मैं कैपिटल गेन करता हूं वो ठीक बात है, वो ठीक बात है। मैं कह रहा हूं अगर किसी एक्टिविटी को 17(3) ने कहा कि ये ट्रांजेक्शन भी एग्जेम्प्ट है, तो क्यों आईटीसी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा? Mr. Siv, you got my point. What I like to explain or what I like to convey कि भाई मेरा फुल्ली ट्रांजेक्शन सेल ऑफ लैंड है, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। किसके कारण? शेड्यूल 3 के कारण। बट वो एग्जेम्प्ट है ना फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, आउट ऑफ द जीएसटी परव्यू। गोपाल मित्तल एंड एसोसिएट आप कह सकते हैं, बट कैसे आउट ऑफ द जीएसटी? बिकॉज ऑफ द शेड्यूल 3। और शेड्यूल 3 के एक पैरा को, पैरा 5 को उसने क्या कहा कि भैया ये तो मेरा एग्जाम सप्लाई है फॉर द पर्पज ऑफ रिवर्सल। इसने तो साफ साफ कह दिया ना कि फॉर द पर्पज ऑफ रिवर्सल आपको मैं एग्जाम्प्ट मानूंगा, मैं सेल ऑफ लैंड को एग्जाम्प्ट मानूंगा। then all these justification would not help a lot, but हाँ, मैं इनकी बात कर रहा हूं 1+Note 2 की, अश्विन ठक्कर जी की बात कर रहा हूं मैं। सर
मैंने तो सिर्फ लैंड सेल किया है। एक क्वेश्चन तो अपने आप से पूछिए, एक क्वेश्चन तो अपने आप से पूछिए कि क्या ये सेल के लिए या किसी भी चीज के लिए कोई आईटीसी आपने यूज की है उस एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए? अगर आंसर यस आता है कि कुछ कॉमन आईटीसी है जो कि सेल ऑफ लैंड जो की है उसके लिए भी यूज हो रही है और मेरी बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज हो रही है, देन आंसर वुड बी यस, यू नीड टू रिवर्स आईटीसी। अगर सिर्फ एक जमीन थी मेरी और उस जमीन को मैंने सेल कर दिया, कोई भी मेरी आईटीसी का प्रोपोर्शनेट यूज नहीं हुआ, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स एनी आईटीसी इवन दो माई आउटवर्ड सप्लाई कंसिस्ट वन एग्जेम्प्ट सप्लाई। याद रखना, सेल ऑफ लैंड आउट ऑफ द जीएसटी परव्यू है बिकॉज ऑफ द शेड्यूल 3, बट शेड्यूल 3 के पैरा 5 को 17(3) ने कहा कि मैं इसे एग्जेम्प्ट मानूंगा। आंसर वुड बी सेल ऑफ लैंड एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है फॉर द पर्पज ऑफ 17(2) रिवर्सल के लिए। हाँ, अब ये क्वेश्चन आता है सेकंड पॉइंट। पहला तो आपको ये देखना कि भैया जो ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट है या नहीं है। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, आपको ये देखना है कुछ कॉमन आईटीसी है या नहीं है। अगर कुछ भी आईटीसी आपने उस चीज के लिए यूज नहीं की तो किस बात का रिवर्सल? 17(2) यही तो कहता है ना कि अगर आपने कोई आईटीसी दो पर्पज के लिए यूज किए या दो सेल के लिए एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल के लिए यूज किए, देन यू नीड टू रिवर्स कॉमन आईटीसी। अरे कॉमन होगा तब मैं रिवर्स करूंगा ना, अगर कॉमन ही नहीं है तो रिवर्सल क्यों? दैट पॉइंट इज द मेन क्रक्स इन सब नोटिस का जवाब देने के लिए। ये जो नोटिस आते हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपने एग्जेम्प्ट में कुछ डाला है और टैक्सेबल में कुछ डाला है, उसका रेशियो कैलकुलेट करते हैं और सिंपली कहते हैं। वो ये बात को ध्यान ही नहीं रखते या वो ध्यान रखना नहीं चाहते क्या कि कुछ कॉमन आईटीसी है या 1-to-1 है। ये कॉमन और 1-to-1 का खेल क्या है, विल डिस्कस इन द रूल 42 विद द हेल्प ऑफ वन प्रैक्टिकल एग्जांपल। विल डिस्कस इन द रूल 42 विद द हेल्प ऑफ वन प्रैक्टिकल एग्जांपल, जस्ट वेट फॉर दैट टाइम। सुनील गुप्ता जी ने पूछा कि रेस्टोरेंट चार्जिंग 5% विदाउट क्लेमिंग आईटीसी वेदर इट वुड बी ट्रीटेड एज एग्जेम्प्ट, क्या 17(3) में इसको एग्जेम्प्ट माना गया है? पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, क्या 17(3) में एग्जेम्प्ट माना गया है? भाई नॉर्मली एग्जेम्प्ट 2 क्लॉज 47 में डिफाइंड है, 3 कैटेगरी ऑफ द ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट है। आप समझ लीजिए, मैं एक बार रिपीट करता हूं, सुनील जी के क्वेश्चन के पॉइंट का आंसर दे रहा हूं मैं। 2 क्लॉज 47 क्या कहता है, आपकी अगर सप्लाई नील रेटेड है तो उसे एग्जेम्प्ट माना जाएगा। दूसरा, अगर कोई गवर्नमेंट ने बाय वे ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, अगर मैं सीजीएसटी की बात करूं तो सेक्शन 11 के पावर को यूज करते हुए, और अगर मैं आईजीएसटी की बात करता हूं तो सेक्शन 6 के पावर को यूज करते हुए गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन इश्यू किया है, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, गुड्स के लिए 2/2017, सर्विस के लिए 12/2017, उनमें अगर आपकी एक्टिविटी का नाम लिखा तो वो एग्जेम्प्ट है। और तीसरा, इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। नॉन टैक्सेबल क्या है, मेरी भाषा में मैं नॉर्मली यूज करता हूं 1+5, 1 अल्कोहलिक लीकर, 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये क्या है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ये 3 तरह की एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई में 3 पार्ट इंक्लूड है। सुनील जी, मैं आपके पॉइंट का आंसर कर रहा हूं, तो रेस्टोरेंट यहाँ पे कहीं भी कवर नहीं है, तो ये तो मेरा एग्जेम्प्ट नहीं हुआ। अब मैं आता हूं 17(3) ने क्या कहा, 3 और ट्रांजेक्शन को ऐड किया ओनली फॉर द पर्पज ऑफ 17(2। कौन कौन सा? एक, सिक्योरिटी के सेल का, दूसरा आउटवर्ड आरसीएम, और तीसरा शेड्यूल 3 का पैरा 5। इट मींस इन 6 एक्टिविटी में आपका ये ट्रांजेक्शन कवर नहीं है, तो even though you are not paying the tax, but it is not, or you are not taking the ITC, but it does not mean that it is an exempt. You need to reverse common ITC. I hope it is clear. एक सेकेंड, electricity supply by the RW is an exempt, that there will be ITC reversal. अगर कोई कॉमन आईटीसी यूज हुई है बूथ पर्पस के लिए तो रिवर्स करना पड़ेगा, बट इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई कॉमन आईटीसी यूज नॉर्मली नहीं होती, therefore there is no requirement of reversal. Sale of the car below WDV, it is treated as an exempt, so we have to reverse the ITC. क्या कोई कॉमन आईटीसी यूज हुई है उस कार को सेल करने के लिए? क्या कोई आईटीसी कॉमन है जो कार के लिए भी यूज हो रही है and for other purpose? Answer would be prima facie no. And उसे आप exempt क्यों मान रहे हो? उसे आप exempt क्यों मान रहे हो? सेल ऑफ कार ऑफ द ऑफिस बिलो WDV, क्योंकि
आयुषी जोशी जी, मैं जहां तक रिकॉल कर पा रहा हूँ वो नोटिफिकेशन नंबर 8/2018 था, 25 जनवरी का, ठीक है ना। सेल ऑफ ओल्ड कार इज टैक्सेबल बट बिलो डब्ल्यूडीवी इज नॉट टैक्सेबल, वो एक नोटिफिकेशन आया था 8/2018 या 9/2018 की बात करूं, उसने कहा कि वैल्यू बिलो द डब्ल्यूडीवी वुड बी जीरो, मार्जिन नेगेटिव है तो उसका वैल्यू जीरो माना जाएगा एंड देयर वुड बी नो टैक्स, बट इट डजंट मीन इन माय व्यू दैट इट इज नॉट टैक्सेबल, it doesn't mean that it is an exempt and therefore you need to reverse, no. बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। विंड मिल मेंटेनेंस चार्जेस पेड विद जीएसटी इज सच आईटीसी रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स, कितने भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, दो चीज मैं आपसे बोलूंगा, दो चीज आपसे बोलूंगा, क्या वो ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट है? एग्जेम्प्ट के लिए आपको एक तो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, साथ में इन 3 ट्रांजैक्शन को ऐड करना पड़ेगा। अगर आंसर यस आता है तब आपका सेकंड स्टेप, मैं आपको स्टेप बता रहा हूं सर, मैं हर ट्रांजैक्शन का आंसर नहीं दे सकता, या आज अगर हम आंसर कर भी लेंगे तो आने वाले टाइम पे कुछ और नए क्वेश्चन आएंगे, तो मुझे उसे कैसे देखना है, मेरा देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए, बस मैं खाली वो ही बता रहा हूं आपको। पहला नजरिया होना चाहिए, क्या वो ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट है? एग्जेम्प्ट के लिए मुझे क्या देखना है? पहला 247 की डेफिनेशन, 2 क्लॉज 47 की डेफिनेशन, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन या नॉन टैक्सेबल, एक आइटम पैक कर दिया, दूसरा 3 का बंडल उठाया, वो क्या कहता है? वो 3 कैटेगरी जो भी हमने बात की, अगर एग्जेम्प्ट है क्या कॉमन आईटीसी, अगर है तो रिवर्स करना पड़ेगा। जीएसटी टू बी पेड ऑन मार्जिन वैल्यू और ऑन वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, मार्जिन, अगर मार्जिन नेगेटिव है तो जीएसटी नहीं है, नोटिफिकेशन रेफर कर लेना 8/2018। Need to reverse the common ITC where restaurant opted 5% decide directly related to the restaurant services. मतलब आप ये कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट के अलावा भी कोई सप्लाई कर रहा है जो कि टैक्सेबल है? और वहां पे आप कह रहे हैं कोई एक ऐसा कॉमन चीज है जो दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा है। शिव याद है मुझे क्वेश्चन, मिस्टर शिव मुझे याद है क्वेश्चन, मुझे याद दिलाते रहना, स्किप ना हो जाए, ठीक है। सेकंड हैंड सेल कार पर आईटीसी रिवर्सल फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, प्लीज एक्सप्लेन, लेट मी अगेन क्विकली टेल एंड देन विल मूव टू द डिस्कशन। पहला पॉइंट है कि आईटीसी, मैं अगर बात करता हूं कार की मैं आईटीसी लेता नहीं हूं और उस नोटिफिकेशन की कंडीशन भी कि आईटीसी नहीं ले सकते। दूसरा, मैं अगर डब्ल्यूडीवी के ऊपर सेल करता हूं तो मार्जिन पे टैक्स लगेगा, अगर डब्ल्यूडीवी के बिलो सेल करता हूं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा बात क्या है कि बिलो मार्जिन, बिलो डब्ल्यूडीवी अगर मैं सेल कर रहा हूं, मार्जिन नेगेटिव है, लॉस में सेल कर रहा हूं, जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, बट इट डजंट मीन यू नीड टू रिवर्स आईटीसी। नहीं, अर्जुन ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, पर ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रूल 42 में, तब समझ में आएगा कि कौन सा आईटीसी में कम लूंगा और कौन सा आईटीसी में रिवर्स करूंगा। मतलब कुछ कंपोनेंट ऐसे जिसको आपको रिवर्स में ही दिखाना है और कुछ कंपोनेंट है जिसको आपको नेटिंग ऑफ करना है, ठीक है। अब एक बार जाते हैं, अब एक बार थोड़ा मूव करते हैं, मैं पहले मिस्टर शिव के क्वेश्चन का आंसर देता हूं क्विकली, देन विल मूव टू द डिस्कशन। आपने ये कहा कि हाईसी सेल को कहां पे दिखाना है, जीएसटीआर 1 एंड 3B में। अभी मैं 3B की बात कर लेता हूं। हाईसी सेल है क्या? टैक्सेबल है? नहीं। एग्जेम्प्ट है? नहीं। नॉन टैक्सेबल है? नहीं। तो क्या है? ये शेड्यूल 3 में कवर है, इन तीनों चीजों में तो कवर नहीं है। शेड्यूल 3 के ट्रांजेक्शन को मैं क्या कहूं, देखो पहले आप समझिए नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या है, सप्लाई विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स। उसका आंसर क्या है भाई? 1+5। 1+5 मतलब एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये बात क्लियर है। तो जब पहली बार ये 3B का फॉर्मेट जब हमने देखा था, जब हमने 3B का फॉर्मेट देखा था ना, तो मालूम है ये 3.1.E देख के हमें क्या लगा था? 3.1.E देख के हमें क्या लगा था? हमें देख के ये लगा था कि यहाँ पे मुझे नॉन टैक्सेबल सप्लाई देनी है। मतलब क्या? अगर मैं एल्कोहलिक लीकर की सप्लाई करता हूं उस कॉमन जीएसटी में, या अगर मैं पेट्रोल की सप्लाई करता हूं, 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उस केस में मेरी सेल वैल्यू अगर है तो मुझे यहाँ पे देना है। मैटर क्लोज। पहली बार जब जीएसटीआर 9 का फॉर्मेट आया, उन्होंने टेबल 5 में क्या कहा? नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, नॉन, ये सेम वर्ड लिखा, नॉन जीएसटी सप्लाई, और विद इन ब्रैकेट या साथ में क्या लिखा? इंक्लूडिंग नो सप्लाई। कहने का मतलब क्या हुआ
कि जो हम मतलब समझ रहे थे नॉन टैक्सेबल इज इक्वल टू नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, वो मतलब तो नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये कह रहा है नो सप्लाई को भी इंक्लूड करो। अब नो सप्लाई का मतलब क्या है? इन माय व्यू इट इज नथिंग बट द शेड्यूल 5 के 8 ट्रांजेक्शन। शेड्यूल 5 के 8 ट्रांजेक्शन। अब जीएसटीआर 9 में अगर कोई चीज मैं कवर करता हूं ईयरली में, तो मुझे मंथली भी कवर करना पड़ेगा। आई नीड टू डिस्क्लोज ऑन मंथली बेसिस ऑल्सो ना, तभी तो वो ईयर टू ईयर में मतलब कंसोलिडेशन जब करूंगा तो मैच होगा डेटा मेरा। इट मीन्स माई पर्सनल व्यू, इट इज नोवेयर रिटन इन द लॉ, माई पर्सनल व्यू दैट जो 3.1.e नॉन जीएसटी है ना, उसमें 2 ट्रांजेक्शन इंक्लूड करना है। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, नो सप्लाई। नॉन टैक्सेबल क्या है? 1+5। नो सप्लाई क्या है? शेड्यूल 3। और हाई सीसीएल क्या है? पैरा 7, पैरा 8, इन सब ट्रांजेक्शन की बात करता शेड्यूल 3। तो ये क्या है? मेरा ये नॉन जीएसटी सप्लाई में नो सप्लाई जो शेड्यूल 3 के ट्रांजेक्शन की बात करता हूं, मेरे हिसाब से अगर मेरी कोई हाई सीसीएल है, सेल ऑफ जो भी एक्शनेबल क्लेम है अदर देन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, इन सभी ट्रांजेक्शन को जिसे शेड्यूल 3 में कवर किया गया है, I have to report in 3.1.e and also I have to report in table 5 of the GSTR 9. Is it clear? Shiv, Mr. Shiv, kindly confirm the question which you have asked. So I can move to the next point. And same टेबल 8 जीएसटीआर 1 है, वहां पे आपको ये रिपोर्ट करना है। सर मैं इनकम टैक्स के बारे में तो नहीं बता सकता, मैं इनकम टैक्स के बारे में तो नहीं बता सकता, मुझे सच में आइडिया नहीं है, तो बेटर मैं कुछ गलत बोलूं, इससे अच्छा ना बोलूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन 3B you have to report in 3.1.e and you have to report in 3B and you have to report in GSTR 1 table 8. Same, Arjun, Mr. Arjun, that answer would be same, my answer would be same. जितने भी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं या जितने भी शेड्यूल 3 के ट्रांजैक्शन है, यू हैव टू रिपोर्ट इन 3B इन 3.1.e. हाँ, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी मैं ई में दिखाऊंगा, मैं ई में दिखाऊंगा, आई विल रिपोर्ट इन ई। रोहित जसूजा, ये बात हम रूल 42 में करेंगे, रेस्टोरेंट के केस में मेरे हिसाब से आएगा ही नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे आईटीसी उतना ही लेना है टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। सिर्फ वहां पे सेपरेट फील्ड है जीएसटीआर 1 टेबल 8। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अदरवाइज क्या होगा, ये अपना डिस्कशन सिर्फ क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट होकर रह जाएगा। अब मैं बात करता हूं 17.4 की। इंश्योरेंस नहीं, सिर्फ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टिंग इन सर्विसिंग बाय वे ऑफ द एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन, एडवांसेज shall have the option to either comply with the provision of subsection 2। मतलब क्या हुआ? 17.2 मतलब exempt और taxable। exempt क्या होता है? जो वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं, that is the exempt supply। taxable क्या है? मान लो कोई प्रोसेसिंग फीस वो चार्ज करते हैं, that is taxable supplies। तो exempt और taxable वो दो तरह की सप्लाई करते हैं। कौन? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी की बात कर रहा हूं। तो अब अगर वो दो सप्लाई करते हैं तो उनको 17.2 के अकॉर्डिंग रूल 42-43 कंप्लाई करते हुए आईटीसी रिवर्स करना है। और दूसरा उनको एक बहुत बेटर ऑप्शन दे दिया, क्या दे दिया? स्ट्रेट फॉरवर्ड 50% रिवर्स कर दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड 50% रिवर्स कर दो। मतलब क्या हुआ? इधर दे हैव टू कंप्लाई 42-43 और सेकंड ऑप्शन क्या है? वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटसाइडर आईटीसी का 50% रिवर्स कर देंगे। अब मैंने एक वर्ड यूज किया, आउटसाइडर आईटीसी का। ये वर्ड क्यों यूज किया? बिकॉज ऑफ द सेकंड प्रोवाइजो। सेकंड प्रोवाइजो क्या कहता है? जो ये 50%, 50% का जो आईटीसी रिवर्स करना है, ये एक ट्रांजैक्शन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब उस आईटीसी को आप पूरा ले सकते हैं। कौन सा आईटीसी? लेट्स से आई एम आईसीसी बैंक मुंबई एंड यू आर आईसीसी बैंक दिल्ली, हम दोनों का पैन नंबर सेम है। अगर मैं आपको कोई ट्रांजैक्शन करता हूं, आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन करता हूं, कोई सप्लाई करता हूं गुड्स या सर्विस की, तो ये ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 पैरा 2 के कारण ये टैक्सेबल बन जाएगा और मुझे टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा। मैं टैक्स इनवॉइस रिलीज करूंगा, आप आईटीसी लेंगे। और अब आप कॉमन आईटीसी का जब रिवर्स करते हैं, भाई जो आईटीसी का रिवर्स करते हैं 50%, इन दैट केस क्या
उस आईटीसी को भी रिवर्स करना जो आईसीसी बैंक मुंबई के बिल के ऊपर था? आंसर वुड बी नो. Provided further that restriction of the 50% not apply to the taxes paid on supplies made by one registered person to another registered person having the same PAN. Distinct person कहते हैं टेक्निकली इसको. करेक्ट. फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है? एक बार अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो shall not be withdrawn during the remaining part of the financial year. परफेक्ट. अब आते हैं हम लोग रूल 42 के ऊपर. 1 मिनट खाली ब्रेक लूंगा. 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, मैं वापस रिज्यूम करता हूं. जस्ट 1 मिनट ब्रेक. We can start again. So you were saying that please tell me rule 38. यही तो रूल 38 है. रूल 38 का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कशन किया 74 के लिए जो रूल बना है वो रूल 38 है. तो बेसिकली रूल 38 ही बात कहता है कि 50% आपको आईटीसी रिवर्स करना है, डिस्टिंक्ट वाला इंक्लूड नहीं करना है, और एक बार ऑप्ट कर लिया तो विड्रॉ नहीं कर सकते. कोई स्पेसिफिक पॉइंट जो आप पूछना चाहते हैं रूल 38 के रेफरेंस में? अमाउंट जो सेक्शन 41, 42, 43 के रेफरेंस में है, राइट? 41, 42, 43 के रेफरेंस में, राइट? उस पॉइंट की बात कर रहे हैं. रिडंडेंट है सर, रिडंडेंट है, कोई यूज नहीं है उसका. रीजन क्या है? 41, 42, 43 है तो सही सेक्शन, पर ऑपरेशनल नहीं है. मतलब मैचिंग मिसमैचिंग कॉन्सेप्ट और वो सब कॉन्सेप्ट नहीं. और अभी अपने फाइनेंस एक्ट 2022 का जो अमेंडमेंट था 41 को चेंज किया, रिप्लेस किया. 42, 43 कैपिटल तीनों को डिलीट कर दिया, ओमिट कर दिया. एंड देयरफॉर प्रोविजन तो है बट उसका कोई यूज नहीं है. दैट इज माय व्यू. अगर आप पूरे जीएसटी लॉ को देखेंगे तो हर बार जो रेफरेंस है, आज भी जीएसटीआर 2 का रेफरेंस है, और इवन रूल 38 में भी जीएसटीआर 2 का रेफरेंस है. करेक्ट? तो इन सब का यूज क्या है? कोई यूज नहीं है, ठीक है. बट वो चेंज नहीं हुआ आज तक. पहली बार फाइनेंस एक्ट ने क्या हुआ, जो यूज में प्रोविजन नहीं है उनको डिलीट किया, उनको ओमिट किया. तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जिस दिन फाइनेंस एक्ट 22 अप्लाई होगा ना, इफेक्टिव होगा ना, देन इन दैट केस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम
जो भी ये रूल्स है ना, इन सब में आपको ये अमेंडमेंट दिखाई देगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझते हैं, कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को मालूम था, लेकिन बस एक बार खाली रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अब मैं एक बार 3B में जाता हूं, फॉर एग्जांपल GSTR 3B के फॉर्मेट में जाता हूं। एक क्वेश्चन पूछा भी था आपने किसी पार्टिसिपेंट ने, मतलब क्या मुझे जरूरी है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवर्सल दिखाना, या मैं चाहूं तो डायरेक्टली ITC अवेलेबल में नेट अमाउंट ले लूं? इंपैक्ट सेम है, गवर्नमेंट को, रेवेन्यू को कोई नुकसान नहीं है, टैक्स का नुकसान तो नहीं है, ये बात तो क्लियर है। तो रिपोर्टिंग कैसे होनी चाहिए? कई लोग अपने हिसाब से नेट में रिपोर्टिंग करते हैं, कई लोग ग्रॉस करके बैलेंस पार्ट को मतलब ग्रॉस करके इनएलिजिबल पार्ट को रिवर्सल में दिखाते हैं। तो कौन सा पैटर्न ठीक है? दोनों पैटर्न ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी पैटर्न पे। बट मेरा एक मानना है, रूल 42 एक बार पढ़ते हैं एंड उसके बाद में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। रूल 42 में T1, T2, T3, T4, D1, D2, C1, C2, ये टोटल यूं कह सकता हूं कि जो टोटल टर्म है उनको एक बार समझते हैं, एंड देन विल कम टू द और विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन कि ITC का रिपोर्टिंग कैसे होना चाहिए इन माय व्यू। ठीक है, पहले T का मतलब क्या है? टोटल इनपुट। देखो सर, इसका हम प्रैक्टिकल है ना, एक एग्जांपल करेंगे एंड आप सभी लोगों को मुझे आंसर देना है। उस 10 मिनट सिर्फ आपको वो एग्जांपल देखना है और उसका आंसर करना है, ठीक है। अभी आप इस रूल 42 को समझिए, कोशिश कीजिए कि जितना बेटर हम समझ सकें, सो दैट वी कैन एबल टू गिव द आंसर और वी कैन एबल टू हैंडल द आंसर ऑफ ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। T टोटल ITC इन ए टैक्स पीरियड, एक बार क्विकली कंप्लीट कर लेते हैं एंड फिर हम ऐसा करेंगे 6:30 तक डिस्कशन करेंगे एंड विल ट्राई टू स्पेंड हाफ एन आवर ऑन द क्वेश्चन आंसर। ठीक है, T टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट है। मेरी बिजनेस में जितनी भी तरह की क्रेडिट है उसको मैंने एक बास्केट में डाल दिया, एक बास्केट बना लिया। अब ये मेरी बास्केट क्या है? ये टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट की है। अब इसमें से मुझे नाम देना है T1, T2, T3, T4। क्या है T1 का मतलब? ITC का वो हिस्सा, दैट पार्ट ऑफ द ITC जो आप यूज करें नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। अब देखो, ITC दो तरह की हो सकती है या दो तरीके से यूज हो सकती है, या तो इसका 1-to-1 रिलेशन हो, 1-to-1 रिलेशन हो, या कॉमन रिलेशन हो। 1-to-1 रिलेशन क्या? मान लीजिए मैं एक पढ़ाने के लिए मैं एक राइटिंग पैड परचेस करता हूं, डिजिटल पैड, ठीक है, डिजिटल राइटिंग पैड जिसका कोई यूज ही नहीं है इसके अलावा। तो मैं कह सकता हूं कि जो मैंने राइटिंग पैड को परचेस करने के लिए जो टैक्स पे किया है वो टैक्स एक्सक्लूसिवली विद रिस्पेक्ट टू द आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज है, पहली बात। दूसरा, अब मान लो मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूं, जिसके माध्यम से मैं पढ़ा भी रहा हूं, और जिसके माध्यम से मैं क्या करता हूं, मैं अपने ऑफिस के काम या कोई एग्जाम या कोई और चीजें भी करता हूं। इन दैट केस आई कैन से that GST paid on the internet charges is not having exclusive relation either with business purpose or non-business purpose or taxable supplies or exempt supply। मतलब क्या हुआ? दो तरह के रिलेशन होंगे ITC में, या तो एक्सक्लूसिव या कॉमन। आपको क्या करना है, जो बास्केट आपने भरी थी ना, जिसको आपने T का नाम दिया, अब T में क्या करना है? T1, T2, T3, T4 ये चार ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करने हैं, और ये चारों ट्रांजैक्शन का रिलेशन क्या है? एक्सक्लूसिवली, मतलब 1-to-1 रिलेशन है। T1 क्या है? वो ट्रांजैक्शन जो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज होते हैं। T2 क्या है? वो ट्रांजैक्शन जो कि एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज होते हैं। जैसे GTA का मैंने एग्जांपल दिया, उसने कोई ट्रक परचेस किया, हालांकि ये रूल 42 का पार्ट नहीं होगा, 43 का पार्ट होगा, बट फिर भी अगर मैं नाम दूं तो GTA जो आउटवर्ड RC में कवर्ड है, जिसको 17(3) ने एग्जेम्प्ट कहा, उस पर्पस के लिए अगर उसने कोई भी
आईटीसी इनकर की है, कोई भी इनवर्ट सप्लाई इनकर की है जिसके ऊपर जीएसटी जो पे किया है, दैट वुड बी द T2। T1 क्या हुआ? एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस। T2 क्या है? एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड। T3 क्या है? कंप्लीटली ब्लॉक क्रेडिट, जिसका नाम 17.5 में लिखा हुआ है। 17.5 टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर विच आर अंडर द ब्लॉक क्रेडिट। और T4 क्या है? T4 है मेरा एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई। लाइक जैसे मैंने राइटिंग पेन की बात की, डिजिटल पेन की बात की फॉर प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन क्लासेस। अब क्या हुआ? मैंने T1, T2, T3, T4 को आइडेंटिफाई किया। अब देखिए इसने क्या कहा? C1 निकाला। C1 कैसे निकाला? टोटल बास्केट में T1 को हटा दीजिए, T2 को हटा दीजिए, T3 को हटा दीजिए, जो बचा हिस्सा ना, जो बचा हिस्सा, इसमें क्या किया आपने? इस पूरी बास्केट में से आपने 1-to-1 नॉन बिजनेस वाले ट्रांजेक्शन को, 1-to-1 एग्जेम्प्ट वाले ट्रांजेक्शन को और 1-to-1 ब्लॉक क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन को आपने एक्सक्लूड कर दिया। ये क्या बचा? इस बचे हुए बास्केट को या बचे हुए बैलेंस को मैं क्या कहूंगा? C1। अब C1 में से एक आइटम को और एक्सक्लूड किया। ये आइटम का नाम क्या है? T4। T4 क्या है? एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, लाइक इन माय एग्जांपल डिजिटल पेन व्हिच आई एम यूजिंग ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अब ये कहता है इसको भी हटा दीजिए। बचा क्या? C2। बचा क्या? C2। C2 वो कॉमन क्रेडिट है, C2 वो कॉमन क्रेडिट है which is being used for taxable and exempt supply. If it is being used for taxable and exempt supply, आपको कॉमन आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? उसने एक नया फॉर्मूला बताया। क्या बताया? D1 उसने नाम दिया। उसने बोला D1 इज इक्वल टू C2 मल्टीप्लाइड बाई E डिवाइडेड बाई F। E का मतलब क्या है? एग्जेम्प्ट। F का मतलब क्या है? टोटल सप्लाई। C2 क्या है? कॉमन क्रेडिट। कई बार ये क्वेश्चन आता है सर, अगर आपने टी में T1, T2, T3, T4 हटा दिया तो बचेगा तो 0। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आपने टी में से T1, T2, T3, T4 अगर चारों हटा दिया तो आपको नहीं लगता कि क्लोजिंग बैलेंस जो बचेगा वो 0 बचेगा? नहीं सर, ये तो जो मैंने हटाया वो कॉमन वाले थोड़ी हटाए हैं। मैंने तो बोला सिर्फ एक ही आइटम, सिर्फ टैक्सेबल, सिर्फ बिजनेस पर्पस, सिर्फ नॉन बिजनेस पर्पस, कंप्लीटली ब्लॉक क्रेडिट वाले आईटीसी को हटाया है। मीनिंग देयर बाई, अगर कोई आईटीसी है, जैसे मैं बात करता हूं ऑफिस रेंट की बात करता हूं, जहां से मैं टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट है, वो अभी भी टी में है, बट T1, T2, T3, T4 से एक्सक्लूड नहीं हुआ। इंटरनेट चार्जेस कॉमनली यूज हो रहा है फॉर टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, वो T1, T2, T3, T4 में नहीं है, वो T के बैलेंस पार्ट में बचा हुआ है। मीनिंग देयर बाय C2 कंसिस्ट ऑफ कॉमन क्रेडिट ऑन विच आई नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? सिर्फ रेशियो में बांट दो सर। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको कहूं कि एक वैल्यू दे दूं और मैं उसको सेल्स रेशियो में डिवाइड कर दूं, तो आप क्या करोगे? आप यही करोगे E by F। E क्या है? एग्जेम्प्टेड सप्लाई, और F क्या है? टोटल सप्लाई। ठीक है। इसने कहा अगर D2 कब अप्लाई होगा? अब देखो 17.1 और 17.2 हमने दो सेक्शन पढ़े थे। 17.2 क्या कहता था कि अगर आप टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई दो तरह के ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अगर आप टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दो तरह के ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जेम्प्ट आईटीसी रिवर्स करना है। कौन बोलता है? 17.2। कैसे रिवर्स करना है? 42 ने D2 का फॉर्मूला बताया। D2 क्या था? C2 मल्टीप्लाइड बाई E by F। तो इसने 17 सबसेक्शन 2 की कंप्लायंस की है। अब मैं बात करता हूं 17.1 की कंप्लायंसेस क्या है 17.1? वो कहता है अगर कॉमन आईटीसी आपने दो पर्पस के लिए यूज किया है, वन इज बिजनेस एंड वन इज नॉन बिजनेस, तो टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉन बिजनेस यू नीड टू रिवर्स द आईटीसी। अब प्रॉब्लम क्या है सर? एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल में तो हम रेशियो निकाल सकते हैं, सेल्स का अमाउंट निकाल सकते हैं, कितनी आउटपुट सप्लाई है, बट नॉन बिजनेस को क्वांटिफाई कैसे करें? इसने कहा स्ट्रेट फॉरवर्ड 5%। तो इसने क्या माना कि अगर आप बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हो कोई भी आईटीसी, तो 5% क्या है? नॉन बिजनेस एक्टिविटी, और 95 क्या है? बिजनेस एक्टिविटी। D2 का फॉर्मूला क्या बना? D2 का फॉर्मूला बना C2 मल्टीप्लाइड बाई 5%।
अब क्या हुआ, आपको रिवर्स क्या करना है, D1 प्लस D2, ये अमाउंट कहां डालना है, D1 और D2 जो आया ये अमाउंट कहां डालना है, 4B1 में एज पर रूल 40 to 43। ठीक है, अब क्वेश्चन है क्या मैं नेट कर सकता हूं, मेरे हिसाब से आप नेट मत कीजिए, अगर नेट करेंगे तो आपकी सप्लाई जो है, आपकी सप्लाई है जो आपने रिवर्स भी किया बट वो डिपार्टमेंट को मालूम नहीं चलेगा, तो अननेसेसरी आप इस नोटिस को फेस करेंगे। दूसरा बात, इन एलिजिबल क्रेडिट को कैसे दिखाएं, ग्रॉस करके रिवर्स करें या नेट ही दिखाएं, तो मेरा मानना ये है, T1 T2 T3, T1 T2 T3 इन तीनों आइटम को आप रिमूव कर दीजिए, T1 T2 T3 इन तीनों आइटम को नेटिंग ऑफ करके जो बैलेंस आईटीसी बचता है, मीनिंग देयर बाय C1 दैट शुड बी पुट इन द GSTR 3B टेबल 4A5। क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे इसका कारण ये लगता है, द अमाउंट ऑफ द इनपुट टैक्स credited to the electronic credit ledger be denoted as C1। C1 क्या है, इन तीनों को रिमूव करता है, इसका मतलब अगर आपका कोई 1-to-1 exempt सप्लाई से कोई ट्रांजैक्शन डील करता है, 1-to-1 नॉन बिजनेस एक्टिविटी है या कंप्लीट ब्लॉक क्रेडिट है, उनको आप लेके रिवर्स मत कीजिए, उनको डायरेक्टली लीजिए ही मत। You should not take that ITC, you directly take that netting, but yes 40 to 43 का जो रिवर्सल है ना, 42-43 का रिवर्सल है, दैट यू शुड सेपरेटली रिपोर्ट। अब 2 पॉइंट और बोलता हूं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में आते हैं, मीनवाइल उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, तब तक मैं आपके कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा जब तक आप मुझे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके उसका रिप्लाई नहीं कर दो, तब तक मैं आपको कोई आंसर नहीं दूंगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट है, यू कैन इजीली आस्क, नो प्रॉब्लम। अब 2-3 बातें और बता देता हूं मैं, ये काम साल में हर महीने करना है, जिस भी टैक्स पीरियड की बात करें, एवरी टैक्स पीरियड you need to do the calculation of the 40 to 43 and reverse the same। उसके बाद साल खत्म होने के बाद में आपको ये एक बार और करना है, कब तक टिल सितंबर। क्या करना है, अभी आप जो डेटा ले रहे हो ना, E का, F का या C1 C2 जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, T1 T2 T3, या आप सिर्फ एक टैक्स पीरियड का ले रहे हो, यू आर टेकिंग द डेटा ऑफ ओनली 1 टैक्स पीरियड, करेक्ट ना। बट आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी वापस करनी है साल खत्म होने के बाद, अप्रैल टू सितंबर कभी भी आप कर सकते हो, जो डेटा फाइनल हो जाता है उस डेटा के ऊपर आप ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, तो बटन ऑब्वियस है, फिगर तो डिफरेंट होगा। इन दैट केस जो फिगर एनुअली आता है वो फाइनल अमाउंट है। सिचुएशन नंबर 1, आपने रिवर्स 80,000 किया है बट कैलकुलेशन आ रही है 72,000 की, इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली यू नीड टू रिवर्स 72 बट यू ऑलरेडी एक्सेस रिवर्सल, तो जो 8,000 रुपए एक्सेस रिवर्स किया ना उसको आप 8,000 एक्सेस रिवर्स किया ना उसको अब आप अप्रैल से सितंबर के बीच में 4A5 GSTR 3B की 4A5 में ऐड कर दीजिए। आईटीसी है सर, 2B से मैच नहीं करेगा तो रेड कलर हो जाएगा, क्या दिक्कत है, रेड इज ओनली एन इंडिकेशन बट इट डजंट मीन दैट आई कैन नॉट टेक द आईटीसी बियॉन्ड 2B। बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, बहुत सारी सिचुएशन होती है, जैसे एक मैंने एग्जांपल ये दिया कि भाई आपने साल में कैलकुलेट किया, आपका रिवर्सल का अमाउंट कम आ रहा है, यू विल ऐड दैट अमाउंट, क्योंकि आपने एक्सेस रिवर्स कर दिया, यू विल ऐड दैट अमाउंट एंड इवन इफ द बॉक्स इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द रेड कलर, इग्नोर दैट। मिस्ड आईटीसी को भी तो हम 16/4 कहता है ना, सितंबर तक ले सकते हैं। जो आईटीसी मेरे से छूट गई है, फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी जो छूट गई है, उसको भी तो मैं ऐड करूंगा, जब भी ऐड करूंगा तो रेड में तो कन्वर्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16/4 मुझे सिर्फ इतना कहता है, प्रीपोन मत कर लेना, मतलब नहीं आ रही है तब भी ले रहे हो, बट पोस्टपोन में विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 16/4 कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम आपको ये करना। अब दूसरा सिचुएशन क्या हुआ, 80 आपने रिवर्स किया, अब अमाउंट आता है 85,000, मीनिंग देयर बाई अब आपने जो रिवर्स किया है वो 80,000 रिवर्स किया है, करना कितना था 85, अब 5,000 रुपए और रिवर्स कर दो अप्रैल टू सितंबर बट अलोंग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन से महीने से एप्लीकेबल होगा, मार्च के बाद से।
ठीक है, almost that is the point which I have explained in 42. एक बार छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल और स्ट्रांग हो जाएगा। एक कंपनी है, बुक्स पब्लिश करती है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, बुक्स एग्जेम्प्ट है जीएसटी से, तो मेरा एक कैटेगरी ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या हुआ, एग्जेम्प्ट सप्लाई। दूसरा, एंड आल्सो प्रोवाइडिंग द बिजनेस सपोर्ट सर्विस लाइक एडिटिंग वर्क टू द होल्डिंग कंपनी लोकेटेड आउट ऑफ इंडिया। अब वो क्या बन गया, जीरो रेटेड, और जीरो रेटेड हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जीरो रेटेड इज कंसीडर्ड एज ए टैक्सेबल सप्लाईज, जीरो रेटेड कंसीडर्ड एज ए टैक्सेबल सप्लाईज, राइट ना। तो अब क्या हुआ, एक सप्लाई मेरी एग्जेम्प्ट है और एक सप्लाई मेरी टैक्सेबल है, तो 42 तो पिक्चर में आ गया। इस एग्जांपल में मैंने नॉन बिजनेस एक्टिविटी को कंसीडर नहीं किया, मैंने माना कि कोई भी आईटीसी इज नॉट देयर इन द नॉन बिजनेस एक्टिविटी, देयरफॉर आई कैन से जो T1 था वो आपके कैलकुलेशन में नहीं आएगा, और जो D2 था वो आपकी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई है और टैक्सेबल सप्लाई है। There is no non-business activity, hence T1 would not come into the picture. Therefore, C2 will also not come into the picture. Sorry, D2 will also not come into the picture. D2 होता है ना, वो 5% हम निकालते हैं, वो नहीं है। अब डेटा पढ़ते हैं। एक्सपेंसेस क्या है, मैंने किताब परचेज की 5,30,000। एक बार मुझे आंसर करेंगे, इसको मैं T का नाम दूं, T1 का नाम दूं, T2 का नाम दूं, T3 का नाम दूं, T4 का नाम दूं, C1 दूं, C2 दूं, D1 दूं, D2 दूं। आपको सिर्फ मुझे एक हेल्प करनी है कि T से लेके T4 तक का, मतलब C से लेके TCD 3 की सीरीज पढ़ी थी, आप मुझे सिर्फ आंसर कर दीजिए इसकी लेबलिंग क्या करूं मैं। सुनील गुप्ता जी, आपका क्वेश्चन मैंने देख लिया, एक बार मुझे टाइम दीजिए। ये क्वेश्चन करने के बाद मैं हाफ एन आवर डिस्कस करूंगा आप लोगों की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो भी है, ठीक है। क्या ये T1 है, क्या ये T2 है, क्या ये T3 है, क्या ये T4 है, क्या है ये? बुक्स का परचेज किया, बुक्स का परचेज किया। आप आंसर दीजिए, गलत है सही है कोई दिक्कत नहीं ना, एक बार आंसर तो दीजिए आप लोग। मिस्टर शिव मैंने ये माना है इस एग्जांपल में कि कोई भी चीज नॉन बिजनेस नहीं है इसमें, सो देयरफॉर T1 एंड D2 विल नॉट कम इनटू द पिक्चर। तो मेजरली आंसर T2 है। अच्छा, T क्या है, एक बार वापस पीछे जाते हैं। T क्या है, T इज द टोटल क्रेडिट, T इज द टोटल जीएसटी का क्रेडिट, राइट, जीएसटी का क्रेडिट, जिसमें कुछ जीएसटी को नाम मैंने दिया T1, कुछ जीएसटी का नाम मैंने दिया T2। किताब जब मैंने परचेज की उसके ऊपर कोई जीएसटी है ही नहीं, तो ये तो कुछ भी नहीं है ना, इट इज नथिंग ना। जब जीएसटी नहीं है तो T1 T2 T3 T4 तो कह ही नहीं सकता ना, इट इज नथिंग बिकॉज देयर इज नो जीएसटी। ओके ना, दैट इज ओके। So because there is no tax, hence it is not a T1 T2 T3 T4। ऑफिस का रेंट पे किया मैंने 4 लाख रुपीज एंड 72,000, इसको मैं क्या कहूं, T1 T2 T3 T4 या कॉमन, T1 T2 T3 T4 या कॉमन? द आंसर वुड बी परफेक्ट आंसर वुड बी कॉमन, चलेगा, आंसर वुड बी दी कॉमन, आंसर वुड बी दी कॉमन, परफेक्ट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कंसल्टेंसी। अब मेरे बिजनेस में क्या है, मेरा एक कंसल्टेंट है जिसका मैं जीएसटी बिल आता है और उसको मैं पे करता हूं। जब वो जीएसटी की रिटर्न फाइल करता है, ही इज आल्सो टेकिंग केयर माय टैक्सेबल सप्लाईज, ही इज आल्सो टेकिंग केयर माय एग्जेम्प्ट सप्लाई, मतलब वो दोनों को कंसीडर करके रिटर्न फाइल करता है। क्या बोलेंगे, T1 T2 T3 T4 या C2 C1, क्या बोलेंगे इसको? एब्सोल्युटली करेक्ट, द आंसर इज कॉमन क्रेडिट। एग्जेम्प्ट नहीं है ना अभय ठक्कर जी, एग्जेम्प्ट कैसे हो सकता है? एग्जेम्प्ट नहीं है क्योंकि मैं कह रहा हूं ये 1-to-1 एग्जेम्प्ट सप्लाई के थोड़ी है, नहीं एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट है नहीं ना, मैं जीरो रेटेड सप्लाई भी कर रहा हूं, he is also taking care of that zero rated supply, उसकी टर्नओवर, उसकी कैलकुलेशन, उसकी कंसल्टेंसी, so I can say it is a common credit। ऑथर का पेमेंट वाज ऑप्टेड फॉरवर्ड चार्ज 40,000 ऑथर फॉरवर्ड ऑप्ट कर सकता है क्या? वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, ऑथर फॉरवर्ड ऑप्ट कर सकता है? यस और नो?
डे वन से ऐसा ही था या कुछ चेंज हुआ? वेदर इट वाज डे द सेम पॉइंट वाज और सेम प्रोविजन वाज फ्रॉम डे वन, और कुछ चेंज हुआ था इसमें? चेंज हुआ था, राइट। एक वो आरसीएम का नोटिफिकेशन में ना सीरियल नंबर 9 में पहले ऑथर इंक्लूड था, मतलब ऑथर, पब्लिश ऑथर, म्यूजिक कंपोजर जो भी है ना, वो सारे के सारे आरसी में ही जाएंगे ट्रांजेक्शन। उसके बाद सीरियल नंबर 9A को ऐड किया और उन्होंने कहा ऑथर के पास दो ऑप्शन है, इधर ही कैन ऑप्ट फॉरवर्ड चार्ज, उसके केस में उसको ANX1 और ANX2 देना पड़ेगा, और ही कैन ऑप्ट रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ऑथर का पेमेंट, ऑथर का बिल आया 40,000 का, उसने जीएसटी चार्ज किया 7200। इसको क्या नाम देंगे? T1, T2, T3, T4, D1, D2, C1, C2। सही जवाब देना यार। It's related to book. It's related to book, and book is an exempt. Therefore, I can say it is an exclusively linked to the exempt supply. It is exclusively linked to the exempt supply, and therefore I can label as T2. Perfect. Block नहीं है सुमित नंदा. It is not the block. It is exempted. Block तो 17.5 में नाम होगा तो block होगा. Purchase of the car. हाँ, ये क्या है? डायरेक्टर के लिए मैंने कार परचेज की. It is T3. And no, it is not common. SK, Mr. SK, it is not common. It is block credit. 17.5A का पहला क्लॉज ही तो यही है, मोटर कार up to 13 seater for transportation of person. So it is T3, block credit. Purchase of the software for editing work. एडिटिंग का जो काम कर रहा हूं उसके लिए मैंने कोई सॉफ्टवेयर परचेस किया, उसके ऊपर जीएसटी पे कर रहा हूं. What would be? Absolutely correct. SK, you are very true. जो भी आपने मुझे कहा करेक्ट इंटरप्रिटेशन है. द आंसर वुड बी, अच्छा मैं एडिटिंग का जो सॉफ्टवेयर ले रहा हूं एडिटिंग के काम के लिए, क्या एडिटिंग का काम पूरा टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? एडिटिंग का काम पूरा टैक्सेबल है ना, जीरो रेटेड है तो पूरा टैक्सेबल है. एडिटिंग का काम जीरो रेटेड है विच इज एग्जेम्प्टेड. नो, कंप्लीटली टैक्सेबल. कंप्लीटली टैक्सेबल. राजीव जी कैसे कह रहे हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हो रहा है, जीरो रेटेड सप्लाई के लिए यूज हो रहा है. बुक्स वाला एग्जेम्प्ट है, जीरो रेटेड सप्लाईज. एक बार मैं वापस आता हूं, दो पार्टिसिपेंट के थोड़े से डाउट लग रहे हैं, एक बार वापस देखिए, एक बार वापस देखिए. 17.1 या 17.2 में क्या लिखा है? पार्टली फॉर टैक्सेबल, पार्टली फॉर एग्जेम्प्टेड, एंड टैक्सेबल के साथ में जीरो रेटेड को इंक्लूड किया, मीनिंग देयर बाय जीरो रेटेड इज एन टैक्सेबल सप्लाईज इवन दो यू आर नॉट पेइंग द टैक्सेस if you are making against LUT, but it will be considered as a taxable, no requirement of reversal. So the labeling would be T4. The labeling would be T4 to this credit. Kindly confirm. Repair and maintenance of the building which is debited to the profit and loss account, is it block credit or eligible credit? Is it block credit or eligible credit? ये ब्लॉक कब होता? ये ब्लॉक कब होता? अगर आप इसको एलिजिबल कह रहे हैं, आप इसको एलिजिबल कह रहे हैं तो ब्लॉक कब होता? Very true. Thank you so much, Mr. Tarun Chandana. It will be blocked when it is capitalized. 17.5 C और D में वो एक explanation है ना, वो कहता है कि to the extent of capitalization. Construction of immovable property का मतलब क्या है? कोई भी मतलब है, काफी सारे वर्ड इंक्लूड हैं, बट उसने लास्ट में कहा to the extent of capitalization, और मैंने इस एग्जांपल में क्या कहा? It is debited to the profit and loss account, and therefore it is debited to the profit and loss account, and therefore ITC is allowed. but building है जहां से मैं
बुक सेल करता हूं और वहीं से मैं अपनी जीरो रेटेड सप्लाई का काम भी वहीं से करता हूं, देयरफॉर आई कैन से इट इज अ कॉमन क्रेडिट। सो अगर मैंने जैसे इसको कॉमन का तो मेरा कॉमन क्रेडिट हो गया। अब मुझे रिमूव टोटल क्रेडिट कितनी है, टी क्या है, टोटल क्रेडिट कितनी है 1,54,500, टोटल क्रेडिट कितनी है 154,500, जिसको मैं टी कह सकता हूं। कैन आई से इट इज टी? प्लीज कंफर्म, कैन आई से इट इज टी? टोटल क्रेडिट, कैन आई से इट इज टी? यस आई कैन से। अब मुझे क्या करना है, वन बाय वन रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है? T1 कुछ था नहीं, T2, T2 क्या था, एग्जेम्प्ट वाला। T2 का वैल्यू मालूम है कितना है? T2 का वैल्यू कितना है, एक बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा सर आपको। T2 कितनी है? 72, एग्जेम्प्ट के लिए 7200, फुली एग्री। T3 कितना था? T3 कितना था? T3 कितना था? 60,000। अब टोटल क्रेडिट T 154,500 माइनस T1 जो कि 0 है, माइनस T2 माइनस T3, कितना बैलेंस बचेगा? मैं भी साथ में कैलकुलेट कर लेता हूं। 154,500 माइनस 7200 माइनस 60,000, कितना बचा? 87,300। इसको क्या नाम दूंगा मैं? 87,300 को क्या बोलूंगा मैं? 87,300 को क्या बोलूंगा मैं? नाम क्या दूंगा, लेबलिंग क्या दूंगा? इट इज C1 एंड C1 इज द अमाउंट विच विल क्रेडिटेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इट मींस जब मैं GSTR 3B फाइल करूंगा तो टेबल 4A5 में मैं 87,300 एंटर करूंगा, ना कि 154,500। मैं कितना अमाउंट एंटर करूंगा? 87,300। नेक्स्ट, अब 87,300 के ऊपर आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? कैन एनीबॉडी टेल मी द फॉर्मूला? कैन एनी? C2 कितना है? C2 कितना? सॉरी C2 कितना है? C2 कितना है? C1 में से क्या रिमूव करना पड़ेगा? What component, what amount I need to reduce from C1 to come out to calculate C2? 1-to-1 taxable supplies, sir, 1-to-1 taxable supplies। T4 रिमूव करना है, T4 रिमूव करना है। T4 क्या था? T4 is only 9,000। आशा सी है T4 is only 9,000, क्योंकि 4,500 को तो मैंने कॉमन कहा था ना, 4,500 को तो मैंने कॉमन कहा। ITC लेकिन कॉमन है, टैक्सेबल एग्जाम दोनों के लिए यूज हो रही है, तो उसको तो कॉमन में रहने दो, करेक्ट ना? तो अब जो मेरा अमाउंट आया था 87,300, इसमें से मैंने 9,000 और रिमूव कर दिया, तो कितना बचा? 78,300। 78,300 इज द लेबलिंग क्या होगा? C2। लेबलिंग क्या होगा? C2। अब एक बार फॉर्मूला बताना मुझे, विच आई विल अप्लाई टू रिवर्स। मुझे फॉर्मूला बताना विच आई विल अप्लाई टू रिवर्स माई कॉमन ITC। फॉर्मूला बताना, C2 मल्टीप्लाइड बाई C2 मल्टीप्लाइड बाई C2 मल्टीप्लाइड बाई, लॉजिकली एब्सोल्युटली करेक्ट, C2 मल्टीप्लाइड बाई E बाई F। E कितना है? E कितना है? एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, एग्जेम्प्टेड बाई टोटल, एब्सोल्युटली करेक्ट। E कितना है इस एग्जांपल में? E कितना है और F कितना है? E कितना है और F कितना है? I can simply say E is 4 lakh and F is 10 lakh total। 4 divided by 10 मतलब 40%, मतलब जो आपका अमाउंट आया था ना 78,300 इंटू 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, कितना बचेगा? हाँ, 78,300 का 40%, 31,320, राइट? 31,320 ये लेना है कि ये रिवर्स करना है? करना क्या? ये 31,320 लेना है कि रिवर्स करना है? इस 31,320 का नेट इंपैक्ट क्या लेना है कि रिवर्स करना है? सर, इट इज D1 एंड D1 इज द पार्ट विच आई नीड टू रिवर्स। D1 इज द पार्ट विच आई नीड टू रिवर्स।
D1 is the part which I need to reverse. अब इस D1 को फिगर को आपको कहां पे डालना है? D1 के फिगर को आपको एज पर रूल 40 to 43 डालना है। D1 के फिगर को जो आपका अमाउंट आया ये आपको यहाँ पे डालना है एज पर 40 to 43। इज इट क्लियर? तो जो बैलेंस बचेगा वो नेट आईटीसी बचेगा, दैट इज आफ्टर D1 एंड आफ्टर D2। अगर कोई है तो मैं अमाउंट डालूंगा, दैट वुड बी द नेट आईटीसी। हाँ, एक बात और यहाँ पे जो एज पर 17.5 है ना, इन एलिजिबल आईटीसी जो भी आपने परचेस किया था मोटर का, उसकी आईटीसी को, उसका जीएसटी कंपोनेंट को आप यहाँ पे दिखा देना। जो भी ब्लॉक क्रेडिट है ना एडिशनली, तो आपको लगेगा सर मेरी डबल रिपोर्टिंग हो रही है। नहीं, डबल रिपोर्टिंग नहीं है, ये सिर्फ ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पज है, only for reporting purpose that this much of the ITC was ineligible. Now over to you for any question. From my side today webinar is completed. मैं कभी अब कुछ नया चीज नहीं पढ़ूंगा, आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछते रहिए। 5 मिनट आपको दे रहा हूं, आप क्वेश्चन पूछिए। एक बार फिर मैं चैट को डिसेबल करूंगा, पहले उन क्वेश्चन का आंसर दूंगा, देन आई विल अगेन ओपन द चैट टू पुट योर फर्दर क्वेश्चन। That would be the pattern. 5 मिनट आपके पास में आप क्वेश्चन पुट कीजिए। विल डिसेबल द चैट। उन 5 मिनट में जितने भी आपने क्वेश्चन पूछे थे उसको डिस्कशन करेंगे। अगेन इनेबल, दैट वुड बी द पैटर्न फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर। मैं अभी सिर्फ आपके क्वेश्चन का वेट कर रहा हूं। अनदर 2-3 मिनट्स बहुत है, मेरे को लगता है 2-3 मिनट्स बहुत है। हाँ सर जी पूछ लीजिए क्वेश्चन। अगर आपका कोई और भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अगर मालूम होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। आप क्वेश्चन पूछते रहिए, जो भी क्वेश्चन आप पूछते रहिए। 1 मोर मिनट ज्यादा बेटर रहेगा, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। डिपार्टमेंट का नोटिस है, पर्सनल गारंटी गिवन बाय द डायरेक्टर फॉर टेकिंग द लोन। आरसीएम नहीं भरा हुआ, आरसीएम के लिए कह रहे हैं क्या? दे आर टॉकिंग अबाउट द आरसीएम। चलो सर एक बार डिसेबल कर देते, जो भी 10-15 क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं आराम से। विल इनेबल द चैट अगेन, ठीक है ना? मुझे सिर्फ बीच में क्या क्वेश्चन जब नहीं आएंगे ना तो थोड़ा कंसंट्रेट कर पाएंगे जो भी आपने क्वेश्चन पूछे उनके रिप्लाई पर। नाउ यू कैन नॉट पुट एनी क्वेश्चन। अब एक बार बात करते हैं। T4 का क्या होगा? T4 का क्या होगा? T4 क्या है? जो मैंने C1 के अमाउंट को 3B के टेबल 4A5 में ऐड किया ना, जो 87,300 या जो भी था 78,300, उसमें वो T4 इंक्लूड है। उस पार्ट में 87,300 था ना सर, उस 87,300 में T4 इंक्लूड है, मतलब कॉमन प्लस T4 यू आर टेकिंग द आईटीसी। ड्यूटी स्क्रिप्ट के केस में कॉमन क्रेडिट कौन सा होगा? वो कंसल्टेंट जो हमारी ड्यूटी स्क्रिप्ट को सेल करवाने में या परचेस करवाने में मदद करता है या उस अमाउंट को रियलाइज करवाने में मदद करता है, उसका एक बिल होता है। दैट यू कैन से इट इज ए T1 नहीं है, T2, that you can say exclusively linked to the exempt supply and you are not required, you are required to reverse, or I can say net you can take. So that is the only part which I need to duty credit script के केस में भी आजकल नोटिस देखे मैंने कि वो कहते हैं कि आप अपनी कॉमन आईटीसी, सर कोई कॉमन आईटीसी है ही नहीं।
एक्चुअली कोई कॉमन आईटीसी है नहीं, सिर्फ कंसल्टेंट जो मेरा काम करता है उस डीटी स्क्रिप्ट को सेल करवाने के लिए, ठीक है, रियलाइजेशन करवाने के लिए, उसके बिल को मैं सिर्फ कह सकता हूँ 1-to-1 लिंकिंग है, वो पार्ट आईटीसी नहीं लूंगा, बाकी मुझे कोई रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिपोर्ट करना है क्या, मतलब सेपरेटली नहीं करना। रोहित जसूजा जी, वो क्लब हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो जो 4 या 5 में ले रहे हैं ना, वो कॉमन के साथ क्लब होके वो रिपोर्टिंग हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में सेल ऑफ द म्यूचुअल फंड इज आल्सो एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड आईटीसी टू बी रिवर्स। सिंपल सा बात है, क्या उस एग्जेम्प्ट सप्लाई को करने के लिए कोई आईटीसी 1-to-1 है, कोई आईटीसी 1-to-1 है? अगर यस, आपको आप एलिजिबल नहीं है लेने के लिए। दूसरा, क्या कोई आईटीसी कॉमन है जो कि टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों के लिए यूज हो रही है? अगर आंसर इज यस, यू नीड टू रिवर्स। एक मिनट होल्ड रखना सर, एक मिनट। म्यूचुअल फंड एग्जेम्प्ट है, मान लो कोई कॉमन ऑफिस है जहां से आप म्यूचुअल फंड के लिए भी काम करते हो और साथ में कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तो जो रेंट पे कर रहे हो दैट इज कॉमन, यू नीड टू रिवर्स टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। गारंटी गिवन बाय द डायरेक्टर फॉर टेकिंग द लोन, मतलब ये क्या है पॉइंट, अगर आप गारंटी देते हो ना, खाली गवर्नमेंट गारंटी इज नॉट एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। एक गारंटी के रिगार्ड में डिस्कशन किया मैंने, मतलब आप एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन देखेंगे ना, वहां पे आपको मिल जाएगा गारंटी गिवन बाय द गवर्नमेंट, समथिंग लाइक दैट, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो दैट इज एन एग्जेम्प्ट, मीनिंग देयर बाय उसके अलावा अगर कोई गारंटी देता है देन दैट वुड बी द टैक्सेबल। ये डायरेक्टर ने गारंटी दी है, इट मींस इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई गिवन बाय द डायरेक्टर एंड वुड कम अंडर द आरसीएम बिकॉज़ सप्लाई बाय गिवन बाय द डायरेक्टर टू द कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट। सो नोटिस टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज ओके, बट हाँ लैंग्वेज और बाकी सब देख के आप सरजी जी अगर आप और ज्यादा देखना चाहें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिमूव करके आप कासा के साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल गिव माय फर्दर इनपुट। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जरूर डिलीट कर देना, ऑफिसर का नाम, जीएसटी नंबर, पार्टी का नाम एटसेट्रा। Outward supply, the rent of the residential property is exempted. Rent of the residential property, yes, serial number 12 exempt है. Is we have to reverse common part proportional to that. हाँ, अगर है तो रिवर्स करना पड़ेगा, अगर है तो रिवर्स करना पड़ेगा। कोई कॉमन ऐसी चीज है जो आप दोनों के लिए यूज करते हो, मैं टैक्सेबल के लिए भी यूज करता हूं, मैं एग्जेम्प्ट के लिए भी यूज करता हूं, इन दैट केस यू नीड टू रिवर्स। Is reversal of the air conditioner also required to be reversed 5% of both business and non-business? कोई नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो रही है उस जगह से जहां पे आपने एसी लगाया, सी उसके लिए आप एक बार 43 पढ़ लेना, 43 पढ़ लेना, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन डिटेल बताई गई है। टाइम के कारण हम आज डिस्कस नहीं कर पाए 43, वी विल डेफिनेटली टेक केयर इन सम अदर डे, बट मुद्दा वही है, पॉइंट वही है, पैटर्न वही रहेगा कि क्या नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, अगर है तो रिवर्स करना, अदरवाइज नहीं रिवर्स करना। फाइनेंशियली 20-21 का आईटीसी अवेलेबल इन क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर 22-23 ऑनवर्ड्स इनफाइनाइट पीरियड। आप कभी भी यूज कर सकते हैं, जब तक आपका नंबर एक्टिव है तब तक आप उस आईटीसी को कभी भी यूज कर सकते हैं। Is it mandatory to show the exempt supply if the same is not in PL? It is shown as income and better रहेगा सर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं, मैं अगर कंप्यूटर को सेल करता हूँ बिलो WDV, ठीक है ना, बिलो WDV सेल करता हूँ, सर मोटर कार एक ऐसा ट्रांजेक्शन है, मोटर व्हीकल एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जहाँ पे मेरे पास ऑप्शन, जहाँ पे मेरे पास रिलैक्सेशन है कि बिलो WDV मुझे जीएसटी नहीं देना, ठीक है, बाकी कहीं ऑप्शन नहीं है आपको ये। अगर मैं कंप्यूटर को सेल करता हूँ, मान लो मैं कंप्यूटर को सेल करता हूँ बिलो WDV, डू आई नीड टू पे द जीएसटी? आंसर इज यस, बट क्या पीएल में आएगा? आंसर वुड बी नो। क्यों? क्योंकि वहां पे तो ब्लॉक क्रेडिट के कॉन्सेप्ट से रिपोर्टिंग होती है, करेक्ट। सो इट डजंट मीन दैट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे इस ट्रांजेक्शन को कंसिडर किया
बट वो exempt है, you need to report separately in the 3B and in the 1. मैं वापस चैट इनेबल करता हूँ, प्लीज आस्क द क्वेश्चन, और अगर किसी जवाब से वो सेटिस्फाइड नहीं है, काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं. मुझे आज 10 मिनट पहले मीटिंग क्विट करनी पड़ेगी सुमित जी, एट 6:50. ठीक है, 6:50 पर मैं क्विट कर दूंगा मीटिंग. आई होप इट इज ओके. इफ द फर्म डज नॉट वांट टू क्लेम द आईटीसी, वांट टू डेबिट द होल अमाउंट, प्लीज आप अपने क्वेश्चन को डालिए, फिर 2 मिनट के बाद में चैट डिसेबल करके उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं, उन क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं. एक मिनट और है, आप 1 मिनट में क्वेश्चन पूछ लीजिए जो भी आप पूछना चाहते हैं, और फिर हम एक बार डिसेबल करके उस क्वेश्चन पर जो भी आपने पूछे उस पर डिस्कशन करते हैं. एक बार डिसेबल करता हूँ. ठीक है, if the firm does not want to claim the ITC, ठीक है, want to debit the whole amount of the expenses including GST to PL, then how it is to be reported in 3B? 3B में तो हम सिर्फ टैक्स पार्टी, मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल 4 परचेज के रिगार्ड में क्या करते हैं, टेबल 4 एलिजिबल आईटीसी की बात करता है. अगर मैंने आईटीसी लिया है तो वो कौन सा है, तो पहली बात आपके केस में 4A में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आपने आईटीसी तो लिया ही नहीं. 4B कहता है जो आईटीसी लिया उसमें कुछ रिवर्स करना है, अगेन इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन यू. 4C 4D में कहीं नहीं आएगा. ये सिर्फ अगर आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो बात अलग है. अगर किसी कंपल्सन के कारण कर रहे हैं, मान लो कोई कहीं लिखा हुआ है कि आप लेने के हकदार नहीं है, ठीक है, लाइक जैसे मोटर कार की बात की थी हमने, you are not eligible to take, then you may choose to report in 4D depending upon the situation. Is it because of the any provision you are not entitled to take ITC, or as per your choice you are doing?
अगर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं रिपोर्ट नहीं करना। अब टेबल 5 में अगर आता हूं तो वो कहता है अगर आपने इनवर्ट सप्लाई विच इज एग्जेम्प्टेड है, नॉन टैक्सेबल है या नील रेटेड है तो आपको रिपोर्ट करनी इंटर या इंट्रा। वो भी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं उसने जीएसटी चार्ज किया है सप्लायर ने, तो एग्जाम नील रेटेड नॉन जीएसटी नहीं हो सकती। सो इन दैट केस दैट वुड बी माय आंसर। सुरजीत सरकार जी, प्रोप्राइटर परचेज कार इन योर फर्म नेम, ठीक है। कार सप्लायर रेज इनवॉइस विद जीएसटी, कैन एंटर इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टोटल इनवॉइस वैल्यू और ब्रेक अप द जीएसटी and also transfer this GST to the ineligible ITC. Also, can I mention 3P40 ineligible ITC? 17.5 could mention or not? See, आप मेंशन कर सकते हैं। अकाउंटिंग एंट्री मेरे हिसाब से क्या है, जितनी भी ब्लॉक क्रेडिट है ना, जितनी भी क्रेडिट ब्लॉक है ना, उस ब्लॉक क्रेडिट को आप सेपरेटली दिखाओ। जितनी भी ब्लॉक क्रेडिट है ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ना सेपरेटली दिखाओ, मतलब कहीं ना कहीं आप करो ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड, मंथ, ईयर, आप बता सको कितना ट्रांजेक्शन 17.5 में ब्लॉक था। कंट्रोल अकाउंट के थ्रू, सेपरेट अकाउंटिंग के थ्रू, कैसे भी करो, बट यस ही कैन पास द सेपरेट एंट्री एंड अगेन अल्टीमेटली जाएगा वो मेरी असेट में, टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी कार के वैल्यू में जाएगा और कार के ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, ठीक है। लेकिन यस 3B में आप इसको रिपोर्ट करोगे 4D इनएलिजिबल आईटीसी, टोटल वैल्यू पे जीएसटी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। सुरजीत सरकार जी। तरुण चंदना जी, for ITC on air conditioner by non-business activity means as we reverse for internet charges being used by employees, so the same way air conditioner service. अगर वहां से उस एंटिटी से आप कह रहे हो कि टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट कर रहा हूं, इन दैट केस यू कैन से भाई जो भी कॉमन चीज यूज हो रही है, जो भी कॉमन चीज हो रही है, यू नीड टू रिवर्स। म्यूचुअल फंड एग्जेम्प्ट है या नहीं है, देखो अगर सेल ऑफ म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, सेल ऑफ म्यूचुअल फंड, पहली बात है अगर मान लो ये मेरा बिजनेस का म्यूचुअल फंड नहीं है, पर्सनल है, तो पहली बात है क्वेश्चन ही नहीं है सप्लाई है या नहीं है। तो पहली बात है नॉर्मली ये क्वेश्चन कब आता है, प्रोप्राइटरशिप के केस में, उसी पैन नंबर में म्यूचुअल फंड है और उसी पैन नंबर में मेरा बिजनेस है, तो क्या म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट सप्लाई है? मेरा कहने का मतलब वो सप्लाई नहीं है तो एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल तो बात की बात है, ठीक है। और दूसरा बात, मान लो कंपनी का म्यूचुअल फंड है, देन द सेल वुड नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। म्यूचुअल फंड को अगर मैं सेल करता हूँ, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है ना। सो ये मेरा मानना है, बट हाँ काउंटर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, या आपके पास में कभी भी डाउट हो तो यू कैन डिस्कस विद सुमित जी, यू कैन कम्युनिकेट विद सुमित जी, वी कैन फर्दर डिस्कस। अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो रहा है वी कैन फर्दर डिस्कस, ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। IceGate ITC not shown on 2D, can I avail it because I have the proper invoice payment evidence? IceGate ITC आप इसकी बात कर रहे हैं ना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो अभी रूल 36(4) जिसको चेंज किया ना, लैंग्वेज को चेंज किया, उसने क्या कहा, अगर सप्लायर जीएसटी R1 फाइल करता वही आईटीसी 36(4) में आएगी, मतलब जहां पे सप्लायर जीएसटी R1 फाइल ही नहीं करता, ठीक है, तो उसका आईटीसी विल नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द 36(4) और 16(2)AA, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आइसगेट में आ रहा है या नहीं आ रहा, दैट इज सेपरेट थिंग, बट यू आर एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ द जो भी आपके पास प्रूफ है, बिल ऑफ एंट्री। आई होप आई एम गिविंग द क्वेश्चन टू योर आंसर ओनली, करेक्ट ना। फर्दर क्वेश्चन यू कैन in purchase ITC for the bill dated 31 March appearing in 2P for March goods received on 5 April, but when ITC to be taken in the month of April, ये ITC अप्रैल की होगी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगी, मतलब क्या होता है 16(2), अगर मैं 16(2) की 5 कंडीशन की बात करूं, ठीक है ना, तो 5 कंडीशन पांचों पूरी सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि कोई भी एक हो गई या 2 हो गई, 3 हो गई, मैं ITC ले सकता हूं। आंसर वुड बी नो, आई हैव टू सैटिस्फाइड ऑल द 5 कंडीशन। इन दैट केस सेकंड कंडीशन क्या, गुड्स और सर्विसेज शुड बी रिसीव्ड। मैं एज्यूम करता हूं कि आपको जो रिसीव हुआ, मतलब जो आपके प्रीमाइसेस में है वो 5 अप्रैल को जाया, तो मतलब क्या हुआ, जो सेकंड कंडीशन है वो इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब वो आईटीसी भले पीछे आ रहा है, भले आपके 2B में मार्च में आ रहा है, बट दैट वुड बी कंसीडर्ड द आईटीसी ऑफ अप्रैल। यू कैन ऐड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, नो प्रॉब्लम, यू शुड नॉट टेक, यू शुड अवॉइड द सेम, क्योंकि एक प्रैक्टिस अभी तो स्टार्ट नहीं देखी मैंने, लेकिन आने वाले टाइम में 100% होगी। जब डिपार्टमेंटल ऑडिट होगी ना 65 में, तो वो क्या करेंगे, 31 मार्च के आसपास की डेट का ना टैक्स इनवॉइस उठाएंगे जो भी आपकी परचेज है, और उसको मैप करने की कोशिश करेंगे आपके स्टॉक रजिस्टर से, आपके इनवर्ट रजिस्टर से। अगर आपने
लिखा है कि वो माल 31 मार्च के बाद में आया और गलती से अगर आपने 31 मार्च में ले लिया ना तो प्रॉब्लम है, यू वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक द आईटीसी। एक क्वेश्चन एडवोकेट हर्ष सर, एक क्वेश्चन सॉरी नवदीप शर्मा जी, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है, तो जो मैं जीएसटीआर 9 फाइल करूंगा तो मैं इसको 21-22 में दिखाऊं कि 22-23 में दिखाऊं? भाई मैं कैसे बोलूं 21-22 का वो आईटीसी था जो कि मैंने एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में लिया है, ये आईटीसी 22-23 का था विच आई टेकन इन द रिलेवेंट टैक्स पीरियड। मेरा तो सेकंड व्यू है, बट यहाँ पे काउंटर व्यू आपको जरूर मिलेंगे। मेरा तो सेकंड व्यू मतलब ये आईटीसी 21-22 का नहीं था कि जो आप भूल गए थे और आपने बाद में लिया, नहीं ऐसा नहीं था। ये आईटीसी की एलिजिबिलिटी अप्रैल में थी और ये आईटीसी 22-23 का, इट शुड बी रिपोर्टेड इन द मंथ of April, it should be reported in GSTR 9 of 22-23. It would not come in 21-22, neither in 3B nor in GSTR 9. हम दिखाते हैं ना टेबल 13 GSTR 9 की, वहां पे भी नहीं आएगा, ये मेरा मानना है। सो लास्ट अब मैं वाइंड अप करूंगा लास्ट 2-3 क्वेश्चन लेके, इसके बाद मुझे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, दैट इज द ओनली रीजन। We have received the bill related to financial 2021 expense. So can we जैसे ऑलमोस्ट जो मैंने क्वेश्चन आंसर अभी किया ना वो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे मेरा आपके प्रति रहेगा। सरिका जैन, कंपनी वाज रजिस्टर्ड इन द नॉर्मल टैक्स पीरियड एज आईटीसी, लेटर स्विच टू द कंपोजिशन, had ITC in the credit balance, now turnover exceed the limit again which switch the normal tax, still the credit in the again। आपने पहले वो आईटीसी रिवर्स नहीं किया, आईटीसी 03 है, ठीक है, 18.3 के कारण जो आईटीसी रिवर्स करना वो नहीं किया। अब 18.1 के कारण अगर आईटीसी बनता है तो आप लीजिए, बट दैट शुड बी रूटेड थ्रू आईटीसी 01। पहले पूरा आईटीसी को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, वापस आप लेंगे बेस्ड ऑन द 18.1 एंड 18.2, मतलब वो 30 डेज में आईटीसी 01 आपको भरना पड़ेगा और वहां पे 18.1 जो सी है 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी को टिक करेंगे और 2 लाख से ज्यादा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लेंगे। ऑल दिस स्टफ यू शुड डू। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, 2 क्वेश्चन है। ड्यूटी स्क्रिप्ट तरुण जी का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। T1 T2 T3 द कॉमन इनपुट इज टू बी डिराइव्ड फिगर, डिपार्टमेंट दैट वी हैव टू प्रूव दैट द अदर आईटीसी हैज बीन टेकन स्पेसिफिकली फॉर टैक्स नाउ फॉर। लिटिगेट कीजिए सर, इतने छोटे छोटे मैटर के लिए वो डिपार्टमेंटल आपको परेशान कर सकते हैं, बट लिटिगेट कीजिए इन सब मैटर के लिए। वो आपको नोटिस देगा, ऑर्डर करेगा, करने दीजिए, गो टू द अपील। लास्ट क्वेश्चन फॉर दैट, इफ एन एग्रीगेटर प्रोवाइड एयर एम्बुलेंस सर्विसेज टू द कोविड पेशेंट वेदर दे सप्लाइज एग्जाम, सीरियल नंबर 74 में चेक कर लीजिए। अगर सर्विस प्रोवाइडेड है ट्रांसपोर्टेशन की पेशेंट को एम्बुलेंस में और सेक्टर में, तो उस केस में वो ट्रांजेक्शन आपका एग्जाम्प्ट होगा, बट आपको चेक करना पड़ेगा कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज का पार्ट बन रहा है, 74 का पार्ट बन रहा है, नहीं बन रहा। दैट वुड बी माय आंसर फॉर द टाइम बिंग। Now Sumit, over to you from my side. This today webinar is completed. I have taken a 10-minute extra. I have taken 10-minute early leave. No problem, Arunji. You have delivered wonderful session on this complicated topic. Asahi, are you there? Yes, Sumit ji, I'm here. जी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आशा जी अपना फीडबैक के साथ कंक्लूड करें बाय गिविंग फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स, एंड पार्टिसिपेंट रिकॉर्डिंग विल बी शेयर्ड इन ड्यू कोर्स, जैसे ही हमारे पास डाउनलोड होगी along with the presentation. So now I request Asha ji to say final formally vote of thanks. Thank you, Sumit ji, for giving me this opportunity, and thank you, Arun ji. सुमित जी, आपने कहा कि अपने फीडबैक के साथ आप वोट ऑफ थैंक्स दें। अरुण जी doesn't need any feedback. ये हमारे इतने टाइम से हम इनको सुन रहे हैं, and he is very renowned speaker, he is expert in his subject, तो he don't need any feedback. हमारे पार्टिसिपेंट्स की जो अटेंडेंस है, कितना इंटरेक्टिव उन्होंने सेशन बनाया है, एंड क्वेरीज जो आई हैं, ये अपने आप में एक फीडबैक है कि पूरा इंटरेक्टिव रखते हुए पार्टिसिपेंट्स ने इसको आई मस्ट से, एंड आई एम श्योर कि उन्होंने एंजॉय किया होगा, लर्न किया होगा। थैंक यू सो मच अरुण सर, इतने टिपिकल टॉपिक को थोड़ा इजी फॉर्म में समझाने के लिए, क्योंकि ये जो आईटीसी रिवर्सल है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, T1 T2 T3 घूम जाते हैं उसमें। राइट। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड वी होप कि कल भी आप और भी डे आफ्टर टुमारो आप हमें फिर से ज्वाइन करेंगे इन दिस जीएसटी लर्निंग सीरीज।
Thank you so much. Thank you everyone. Thank you Thank you, Arunji. sir. Thank you Asha. Thank you Bye. every Bye. participant. Thank you.